including branches and study circles of NIRC and CIRC of ICAI. He is a member of Indirect Tax Committee of AFTP and Voice of CA. He's impaneled as indirect tax consultant with the Government Bank and advises PSUs like NBCC. He also has privilege of assisting a renowned author and practitioner in indirect taxation in writing professional books on GST and has authored articles published in professional journals and digital forums. Now I would like to introduce about Ankit ji. C. Ankit Garg is a fellow member of ICAI and also postgraduate in commerce. He also holds the diploma in DISA. He holds experience of more than 14 years. He's an expert as GST consultancy. He has a background of excellence of knowledge in indirect taxes and handles all GST related matters, including GST audits, GST advisory, and GST assessments. He is also advisor for system implementations, accounting problems, etc. He also has vast experience in chart audit of clients in various sectors of business. Welcome, Siddhanji and Ankit ji. Whatever queries our audience will have, we will request to post it in chat box so that all can get resolved. Today we have our panelists CA Rajesh ji and CA Asha ji, who's all you all would be knowing, very active member of CASA. Now I would like to introduce about CA Sumit ji. So Sumit Garg sir is a fellow member of ICAI having 18 plus years of experience. He is also served as secretary of NIRC of ICAI during his tenure of NIRC Regional Council member. He is founder of CASA. CASA has been serving CA profession since 2010. CA Sumit Garg, along with his team, always believe in grooming young CAs, sharing knowledge through regular webinars and seminars by expert faculties and various other activities for welfare of CA profession. Now I would like to invite CA Sumit Garg sir to say a few words. Over to you, sir. Thank you, Pooja, for wonderful introduction about the speaker, Ankit Bhai, Siddhant ji, including me. Ankit ji is also one of the team member of this CASA, and all the panelists. Mohit ji is also here. I think Rajesh ji, Asha ji is joining here. So to all, a warm good evening to everyone, and I hope today definitely we will enjoy and again GST discussion, latest amendment, whether it is here or not. सो अंकित जी और सिद्धांत जी बताएंगे कि क्या जीएसटी में अमेंडमेंट है या नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी क्वेरीज होंगी डेट विल बी टेकन केयर. एंड जीएसटी में तो हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास इतने डिस्कशन के पॉइंट्स होते हैं कि हम क्या करें और कैसे करें. तो विल ट्राई कि आज फिर हमारी जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो. अपार्ट फ्रॉम दिस, एनी अदर टॉपिक यू वांट टू कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट मंडे डिस्कस करें, यू कैन सजेस्ट मी. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, वी आर रेगुलरली ट्राइंग टू मीटिंग ईच ऑफिसेस. सो अगर ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स जो हमारे दिल्ली एनसीआर में हैं वहाँ तक पहुँचें और जो उनके इश्यूज हैं उनको भी एक डिस्कशन में, एक चर्चा में लाएं और इस प्रोफेशनल फोरम को और जो हमारे इश्यूज हैं उन सबको आगे बढ़ाएं. सो with this, thank you to all, and now over for technical session. Pooja ji, over to you for inviting speakers. Ankit ji, who will speak first? We both speak together. Nobody Right, is first, right. nobody This is is the second. beauty. This is the beauty of discussion. Yeah, we will have a basically today's webinar as a discussion, as an Okay. open forum for everyone. Okay. So when we are discussing Siddhanji and me in afternoon that how we should move, because as we know there is no notification and circular issued in last 3 months with regard to the GST. थोड़ी शांति है इस बार GST में. Ankit ji, this is due to the election codes? Yes. Okay. हाँ, ये इलेक्शन है, जीएसटी काउंसिल मिला नहीं है तो इस वजह से ही ये चीजें नहीं हुई, वरना जीएसटी में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स एंड अंकित जी, हम जो पास्ट इश्यूज हैं, जो करंट में इश्यूज आ रहे हैं या जो बर्निंग इश्यूज हैं उन पर हमने टॉपिक्स सकते हैं. रखे हैं सिद्धांत जी और हमने डिस्कस किए हैं जो बेसिकली टॉपिक्स हैं विच आर हेल्पफुल टू द ऑडियंस, विच आर बेसिकली
helpful in practice also, which are the hot topics, which are having the ambiguities, and we are expecting some things more from the government also on those topics. So we mutually discussed, Siddhanji and me, to take the topics which are useful for everyone. Because with regard to the notification 102 has come and which are irrelevant, I think so for everyone, does not have any relevance as such. So Siddhanji, let's start. राइट आप राइट please सुमित जी ने कहें, आप मैंने जब कहें, ज्वाइन फिर किया start तो करते सुमित हैं। जी ने मुझसे पूछा कि आप मुस्कुरा रहे हैं तो कुछ बड़ा आप क्या है, कुछ क्या ऐसा है इशू है, जीएसटी में जो क्या छिपा ऐसा रहे है हैं? तो मैं जवाब दूंगा कि मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि हमारा सुमित जी के साथ और कासा के साथ एक रिलेशन इस तरीके का बन गया है कि सुमित जी पहले टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं, फिर बाद में हमसे कह देते हैं कि भाई आपको आके बोलना है और संभाल लेना है। नहीं तो बाकी जगह जहां भी होती है तो वो ये स्पीकर की कन्वीनियंस पूछते हैं कि भाई ठीक है आपको क्या टॉपिक लेना है, बट सुमित जी को हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है, फेथ है, एक बना हुआ है। तो उस तरीके से आई वुड लाइक टू थैंक सुमित जी एंड कासा टू रेगुलर गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑन रेगुलर बेसिस टू इंटरेक्ट विद प्रोफेशनल फ्रेंड्स। रीजन सिंपल है, कहीं जो लास्ट जो काउंसिल की मीटिंग हुई 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी, तो उसके बाद काउंसिल हैज नॉट मीटेड, दे हैव नॉट मेड एनी रिकमेंडेशन। तो कोई खास मेजर अमेंडमेंट नहीं है। कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री को पर्टेन करती हैं जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद आई। फॉर एग्जाम्पल इन टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स, पान मसाला प्रोडक्ट्स, they gave a specific they issued a specific procedure how they have to declare the capacity, the production capacity, and then to discharge the tax liability. तो एक उस इंडस्ट्री में उन्होंने एक अमेंडमेंट इशू किया। इसके बाद जो अमेंडमेंट आया वो ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग के रिस्पेक्ट में आया, जिसपे कि काउंसिल काफी टाइम से इस इंडस्ट्री को के पीछे परस्यू कर रहा है। इन्वेस्टिगेशंस हुई, उसके बाद उन्होंने इन्फ्यूज करेंगे, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई डीम की करी जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ the price proceeds. So that is how they issued one amendment with respect to this industry. Then another very interesting topic which is gaining prominence pan India, they issued valuation for corporate company is giving corporate guarantee Sanji, to your a voice bank. is breaking. Voice is breaking. Is it clear now? Or is Yeah, there yeah. is internet issue? So they have released a notification wherein they have mandated that valuation of a corporate guarantee will be done as 1% of the value of guarantee that is being given to the bank by the guarantor for the related borrowing company. तो इस तरीके से कुछ स्पेसिफिक जो अमेंडमेंट्स आई, पर्टिकुलरली अगर गारंटी को थोड़ा सा और डिस्कस करूं, बिकॉज दिस इज गेनिंग प्रोमिनेंस। और रिसेंटली अभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक स्टे भी इम्पोज किया है ऑन सर्कुलर 204, वो इन रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट गारंटीज ही है। थोड़ा सा इस अंकित जी इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें 5-6 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे अकॉर्डिंग देखिए अभी ऑडिट का टाइम भी है पास में। हाँ, तो मेरा मेरा मैं थोड़ा सा इसमें प्लीज ऐड कर देता हूँ एक मिनट सिद्धांत जी। फिर जी बेसिकली ऑडिट में क्या है कि जब हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं तो वी हैव टू डिस्क्लोज द रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। In that we have to disclose what much of the amount the corporate guarantee has been given by an entity to its related concern. So while doing the audit, it is very much mandatory in this year for us as prospect to the GST that on that corporate guarantee which has been disclosed in the balance sheet, on that part you have to pay the GST also. So in detail, me and Siddhanji will discuss this topic, and we both has found that this topic will be useful and beneficial to everyone. So Siddhanji, you please continue. Please add on
Yes. to me So what I have to said. explain in brief, let us say ABC Private and XYZ Private Limited are two related companies. Maybe could be by way of common directorship, or could be that ABC owns more than 20% in XYZ Private Limited. So by virtue of Section 15, they become related company. Now, let us say XYZ Private Limited has to obtain a loan from a bank, and the bank says that your credit worthiness is not sufficient in the market and we need a guarantee from an independent guarantor. So ABC comes into picture. ABC is a big, well established entity. ABC says that I will guarantee the loan, and in case XYZ makes any default in repaying the loan to, we will honor this repayment. So ABC has given, this is called as corporate guarantee, wherein ABC has given the guarantee to the bank to enable its related company XYZ to take loan from the bank. इसको हम कॉर्पोरेट गारंटी कहते हैं. अब हम सभी जानते हैं कि, अंकित जी आवाज मेरी ठीक आ रही है? हम सभी जानते हैं कि जीएसटी जब आया तो although majorly all supplies are considered as supply when it is with consideration, but there is an exception. There are 4 exceptions, but in this when we talk about corporate guarantee, तो जो supplies between related persons हैं, even in without consideration they are deemed as supply. तो यहीं से डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है. जब कॉर्पोरेट गारंटी दी गई बाय एबीसी टू XYZ, नो कंसिडरेशन इज चार्ज्ड, बट स्टिल इट इज सप्लाई, इट इज अ डीम्ड सप्लाई बाय वर्च्यू ऑफ शेड्यूल 1. अब डिपार्टमेंट डीजीजीआई ऑलरेडी कई केसेस में इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर चुका है. कई केसेस में कुछ जो एंटिटीज हैं वो ऑलरेडी हाईकोर्ट के आगे रिट पिटीशन फाइल कर चुकी हैं, एंड रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रोसीडिंग्स पर स्टे भी लगाया है. यहां पे कॉर्पोरेट गारंटी जब दी जाती है तो कुछ जो आर्ग्यूमेंट्स एक असेसी के फेवर में अगर हम बात करें, तो कॉर्पोरेट गारंटी, पहली बात आती है कि वेदर दिस कॉर्पोरेट गारंटी विच इज बीइंग गिवन बाय एबीसी, वेदर इट इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और नॉट. देखिए, एबीसी इज इनटू वन लाइन ऑफ बिजनेस, XYZ इज इनटू अनदर लाइन ऑफ बिजनेस. अब जो एबीसी गारंटी दे रहा है उसका बिजनेस नहीं है कॉर्पोरेट गारंटी देना, और ना ही ये गारंटी देने से एबीसी का कोई बिजनेस फर्दर होगा. बिजनेस किसका फर्दर होगा? XYZ को वो लोन मिल रहा है. तो वन पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट इज कि दिस गारंटी इज नॉट बीइंग गिवन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. अब आप कहते हैं कि भाई जो बिजनेस की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में है उसका एम्पलीट्यूड काफी वाइड है. तो वो एम्पलीट्यूड वाइड है, बट इट इज, अगर हम उसके क्लॉजेस को अगर ओवरऑल देखें तो वहां पे जो कंपनी सप्लाई कर रही है उसी के कोर्स ऑफ बिजनेस में है, उसी के बिजनेस को फर्दर किया जा रहा है. बट यहां पे आर्ग्यूमेंट ये है कि बिजनेस फर्दर हो रहा है बोरोइंग एंटिटी का, ना कि जो गारंटी दे रहा है. सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट क्वालिफाइंग इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. एक और जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है जहां पे कि एक केस में ITAT ने भी ये कहा कि when a guarantee is being given there is no provision of service. जब गारंटी दी जा रही है तब कोई सर्विस नहीं है. There could be a service in case the borrowing company makes a default, और उस टाइम पे गारंटी इन्वोक होगी. At that time it can be said that there is a provision of service, but पर से गारंटी देने के टाइम पे कोई सर्विस नहीं दी जा रही है. गारंटी क्या है? एक स्टेक होल्ड, इसको कहते हैं शेयर होल्डर फंक्शन, कि एबीसी XYZ को ओन करती है या फिर कॉमन डायरेक्टरशिप है, इस वजह से ये गारंटी उसने अपनी रिलेटेड पार्टी को दी है. सो द स्टेक होल्डर्स डीम इट फिट टू गिव दैट गारंटी. ये किसी भी बिजनेस के कोर्स में नहीं है या कोई सर्विस प्रोविजन का एलिमेंट इसमें नहीं है. अगर आगे बढ़े और एक और आर्ग्यूमेंट डिस्कस करें तो इसको एक्शनेबल क्लेम भी क्लासिफाई किया जा सकता है. वी ऑल नो एक्शनेबल क्लेम इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 3, वेयर actionable claim is neither a supply of goods nor supply of services. तो वो जीएसटी के एम्बिट से बाहर हो जाता है. एक्शनेबल क्लेम कैसे है? एक्शनेबल क्लेम डेफिनेशन जीएसटी में गिवन है अंडर सेक्शन 2, which says that a claim to any debt
which is enforceable in the court of law. तो यहाँ पे क्लेम क्या है? बैंक के पास एक राइट है टू क्लेम दैट डेट फ्रॉम द गारंटर which is owed by the borrowing company to the bank. So XYZ जो लोन ओ करता है टू द बैंक, उस डेट का जो क्लेम है वो ABC से राइट क्लेम करने का राइट बैंक रखता है, और उसको वो इन्फोर्स भी करा सकता है अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ. वी ऑल नो, जब डीड ऑफ गारंटी साइन होती है और अगर XYZ फेल कर जाता है तो दैट गारंटी इज इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. ABC को वो ऑनर करना ही होगा. तो दिस इज हाउ इट क्लासिफाइज एज एन एक्शनेबल क्लेम, और ये डिफेंस लिया जा सकता है. मूविंग फर्दर, अगर एक बार को ये मान भी ले कि जी सप्लाई इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस है और लेविएबिलिटी है, तो काउंसिल ने इसकी वैल्यूएशन कब डीम करी? 26 अक्टूबर 2023 ऑनवर्ड्स रूल 28 सब रूल 2 लाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि कारपोरेट गारंटी की वैल्यू 1% मानी जाएगी. तो जब इससे पहले वैल्यूएशन मैकेनिज्म ही नहीं था, तो हाउ कैन दे impose tax on guarantees given prior to this date, prior to insertion of rule 28 sub rule 2? This is a defense. Then we all know, in case of related persons, there is a clause, second proviso to rule 28. Rule 28 sub rule 2 वो 26 अक्टूबर 2023 से लाए हैं, बट 26 अक्टूबर 2023 से पहले रूल 28(1) एप्लीकेबल था, और रूल 28(1) में सेकंड प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर रेसिपिएंट एंटिटी को फुल क्रेडिट एडमिसिबल है, तो जो वैल्यू आप इनवॉइस पे अडॉप्ट कर लेंगे दैट विल बी डीम्ड एज ओपन मार्केट वैल्यू. मतलब कि वैल्यूएशन ऑब्जेक्ट ही नहीं की जा सकती. आप ₹1 का भी इनवॉइस रेज कर दें, या एक सर्कुलर ने यहां तक कहा कि इस क्लॉज के अंडर अगर इनवॉइस रेज ही नहीं हुआ है तो हम नील वैल्यू मान लेंगे. तो सेकंड प्रोवाइजो टू रूल 28 एक ऐसी प्रोटेक्शन है जो कि 28(2) के इंसर्ट होने से पहले इन सारी गारंटीज को सेव करेगा, कि जहां पे क्रेडिट एडमिसिबल है, फॉर एग्जांपल XYZ इज इनटू अ टैक्सेबल बिजनेस, तो उसको क्रेडिट एडमिसिबल है, तो अगर ABC उसको इनवॉइस रेज भी कर देती तो XYZ को क्रेडिट मिल जाता. दिस इज अ रेवेन्यू न्यूट्रल सिचुएशन. तो सेकंड प्रोवाइजो विल कम इनटू डिफेंस, एंड वी कैन ऑलवेज आर्ग्यू दैट वैल्यूएशन शुड बी डीम्ड एज निल. तो ये कुछ डिफेंस हैं जहां पे कि हम DGGI के सामने ऑलरेडी ले रहे हैं कि आप जो ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जहां पे गारंटी 26 अक्टूबर 2023 से पहले दी गई है, वहां पर से वैल्यूएशन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही ये लाइबिलिटी नहीं बनती है. और जो सर्कुलर आया, सर्कुलर 204, उसने एक ऐसी क्लैरिफिकेशन दे दी कि वो प्रोस्पेक्टिव बात नहीं कर रहा है, वो ये कह रहा है कि कॉर्पोरेट गारंटी हमेशा से टैक्सेबल है और अब इसकी जो 1% इसकी वैल्यू मानी जाएगी. तो यही कुछ लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लेते हुए जब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक असेसी ने रिट पिटीशन फाइल करी, तो वो उसमें स्टे कर दिया है उन्होंने सर्कुलर का ऑपरेशन, और अभी प्रोसीडिंग्स भी स्टे कर दी हैं. अंकित जी बता रहे हैं कि उनके नोन हैं जिन्होंने जो पिटिशनर हैं, सो ही कैन टेल अस, गाइड अस द साइटेशन. एंड ऐसे अक्रॉस मल्टीपल हाई कोर्ट्स दीज पिटिशंस हैव बीन फाइल्ड. अभी किसी में स्टे नहीं आया है, बट यस, कॉर्पोरेट गारंटी का जहां भी डिपार्टमेंट की तरफ से आपके क्लाइंट को इशू आए तो दैट इज कंटेस्टेबल. एंड अभी कल का ही मैं एक आर्टिकल देख रहा हूं जहां पे सुप्रीम कोर्ट हैज ऑफर्ड टू गिव क्लैरिफिकेशन ऑन द टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी. तो ये अभी डिसाइडेड नहीं है, तो कहीं भी ये कॉल नहीं ले कि आप उसे जमा करा दें उस टैक्स को डिपार्टमेंट के प्रेशर में आकर के. Take some time, say tell the department that we have grounds in our favor as well. Department अपना proceed करेगा, but do not deposit it as of now. अंकित जी, आप इसमें आगे अगर कुछ ऐड करना चाहें. बेसिकली मेरा यही कहना है कि देखिए, कॉर्पोरेट गारंटी सबसे बड़ा इशू इसके अंदर क्या है, 1% वैल्यूएशन भी जो बैठती है ना, वो बहुत ज्यादा बैठती है. एग्जैक्टली. वो और कमर्शियल टाइम ऑफ नॉर्म स्टैंडर्ड्स के सप्लाई, लिए. एक टाइम ऑफ सप्लाई. आज आप कोई लोन ले रहे हैं और आपने, सपोज हम बात करते हैं जो कॉर्पोरेट गारंटी 100 करोड़ की कॉर्पोरेट गारंटी है, तो 1 करोड़ उसका 1% हुआ, और 1 करोड़ पे 18% GST, 18 लाख रुपीज GST हो गया. तो इट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट दैट इज नीड टू बी पेड. और जब जनरली कॉर्पोरेट गारंटी जो देखा गया है, वो बैंक जब लेता है जब वो दूसरी एंटिटी जिसके लिए कॉर्पोरेट गारंटी ली जा रही है उसको इश्यूज है, इसको दिक्कत है. what does you mean?
बेसिकली इसका मतलब क्या है कि यानी उसका बिजनेस इतना वेल नहीं है कि वो खुद अपनी गारंटी दे सके, इसीलिए कॉर्पोरेट गारंटी दी जाती है जनरली। तो वो पहले ही मार में है, उसको हम फिर जीएसटी की मार भी दे रहे हैं। जैसा सिद्धांत जी ने कहा कि रूल के अंदर प्रोवाइजो था कि इफ दे आर द रिलेटेड एंड बोथ हैज द टैक्सेबल turnover and both basically the entity on to which you have to raise the bill is providing the taxable turnover, then there is any value on the invoice would be considered as a fair market value. Exactly. उसको भी यहाँ ओवर रूल कर दिया गया। तो it is a basically hurdle and a what I say is a basically burden on a corporate on this issue. Though one thing is clear to everyone who are viewing out here कि ये सिर्फ कॉर्पोरेट गारंटी पर है, किसी डायरेक्टर ने कोई गारंटी दी है तो उसके ऊपर नहीं है। व्हाट डज इट मीन कि एक कॉर्पोरेट ने दूसरे कॉर्पोरेट के लिए जो गारंटी दी है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल है, और वो भी जब रिलेटेड है तब। सिद्धांत जी करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं कुछ यस एब्सोल्युटली, क्योंकि पर्सनल गारंटी जो अगर वो डायरेक्टर की है जी अगर वो रिलेटेड नहीं है तो ये कॉर्पोरेट गारंटी पे जीएसटी की बात नहीं आती, बिकॉज इन जीएसटी चार्जिंग सेक्शन इट से व्हेन देयर इज नो कंसीडरेशन देन देयर इज नो जीएसटी। बट रिलेटेड पार्टी में क्योंकि शेड्यूल 1 ट्रिगर हो जाता है तो उसकी वजह से ये इशू है। सभी को क्लियर है, इस पे कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट है तो रेज हैंड कर सकता है। वी आर हियर फॉर द डिस्कशन एंड दिस इज अ वेरी बेसिकली वी से one of the biggest GST collector for a government if it would be implemented. राइट, ऑलरेडी मेनी इन्वेस्टिगेशंस आर गोइंग ऑन। और जैसे कि आपने शुरू में बताया कि बैलेंस शीट जो मेरी ऑडिटेड बैलेंस शीट है उसमें एक नोट है कंटिंजेंट लायबिलिटी सेक्शन में या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में, जहां पे कि इन कंपनी Mandatory है, इट इज AS 18 स्टेटेड कहता दैट है कॉर्पोरेट mandatory है, you गारंटीज। have to show it. यस, तो डिपार्टमेंट केवल उस एक नोट को देख करके आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहा है एंड दे आर saying कि हम इसको रिकवर करेंगे, आप इसे जमा कराएं, they are pressuring the entities, so इसमें that is why it इसमें was important to discuss. एक तड़का और लगाता हूं मैं सिद्धांत जी। अब सपोज ये कॉर्पोरेट गारंटी आपने किसी अपनी फॉरेन कॉर्पोरेट के लिए दे दी है तो ये एक्सपोर्ट भी कंसिडर नहीं होने वाली है। नहीं, So clear. it need to look in a very serious manner, and as a professional, since we have to finalize the balance sheet also, so we have to take it a concern. And as an auditor also, though Siddhant ji is saying that High Court की एक हाई कोर्ट ने स्टे इसे हाँ, अभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में स्टे कर दिया है। स्टे कर दिया है, बट हाँ, स्टिल एज एन ऑडिटर कहीं ना कहीं आज की तारीख में हमें कंटीजेंसी में इस पार्ट को दिखाना पड़ेगा अगर जीएसटी पे नहीं करा है उस एंटिटी। right. सिद्धांत जी एज एन ऑडिटर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस चीज में भी फंसेंगे कि हमें एक नोट डालना पड़ेगा कि भाई कितना जीएसटी इस पे बनता है, जो कि क्लाइंट ये व्यू ले रहा है कि इस पे ओवर द पीरियड क्लैरिफिकेशन आएगी, अभी हमें नहीं पे करना। सो दिस विद रिगार्ड टू द कॉर्पोरेट गारंटी। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे मेरे कलीग्स का फोन आता है जो ये कहते हैं कि सर इसका टाइम ऑफ सप्लाई बड़ा सिंपल है, जब आपने कॉर्पोरेट गारंटी दी उसके विद इन 30 days यू हैव टू रेज अ इनवॉइस एंड यू हैव टू चार्ज अ जीएसटी। यहाँ पे भी एक आर्ग्यूमेंट जो है वो लिया गया है कि भाई ये भी एम्बिग्विटी है कि जब डीड ऑफ गारंटी साइन करिए तब टाइम ऑफ सप्लाई अराइज हो रहा है, या जब गारंटी अल्टीमेटली इन्वोक की जाएगी ऑन फेलियर टू रीपे तब टाइम ऑफ सप्लाई अराइज होगा। तो दैट इज ऑल्सो नॉट clarified by the law, so how they can levy GST? That is also an argument before the high courts. हाँ, बिल्कुल, बट अगर हम बेसिक की बात करें सिद्धांत जी तो Right. गवर्नमेंट की इंटेंशन तो जब आप कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हैं उस टाइम पे आपसे जीएसटी लेने की है। बिल्कुल। और हमें सभी को पता है कि क्लैरिफिकेशन जीएसटी के अंदर कितने स्लोली आ रहे हैं। वी आर मच अवेयर विद द इंटरेस्ट पार्ट, इंटरेस्ट ऑन जीएसटी सेक्शन 50 सब सेक्शन 1, 50 सब सेक्शन 3 कैसे कैसे क्लैरिफाई हुए हैं हमें हिस्ट्री पता है। अमेंडमेंट भी आ गई फाइनेंस एक्ट में, उसके बाद भी नोटिफाई कितने दिन बाद हुआ, उसके ये बाद जो क्लैरिफिकेशन कितने दिन बाद आई। जो स्टे किया है वो एक्मे क्लीन टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का केस लॉ है, जी 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 आर्ग्यूड बाय सीनियर एडवोकेट मिस्टर सुजीत घोष। इसमें जी उन्होंने स्टे कर दिया है अभी प्रोसीडिंग्स को। जी। सो बेसिकली अभी हम लोगों को सबसे बड़ा फायदा क्या है कि एक जीएसटी ट्रिब्यूनल बनने जा रहा है, उसकी खुशी भी है।
साथ में अभी जो फायदा है कि क्योंकि ट्रिब्यूनल अभी जनवरी 25 में एक्टिव होंगे, जो अभी एक स्टेटमेंट भी आई है। सो अभी फायदा ये है कि अगर किसी का मैटर कोई बड़ा है तो यू डोंट हैव टू लुक फॉर आफ्टर एन अपील, यू हैव द ऑप्शन टू गो डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट। एंड हाई कोर्ट जो हम देख रहे हैं पीछे कुछ टाइम से, हाई कोर्ट के डिसीजन इज फेवर इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर्स आ रहे हैं, लॉजिकल डिसीजंस हाई कोर्ट के आ रहे हैं। सो दैट इज वन पार्ट। अश्विन सर की रिलेटेड क्वेरी है कि whether we have to, if we comply, whether we have to raise the tax invoice on renewal as well. सर अभी जो अगर एज पर लॉ चले और जो रूल 28 सब रूल 2 उन्होंने इंसर्ट किया है वो केवल ये कह रहे हैं कि जो सप्लाई ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी है उसकी वैल्यूएशन 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन है, तो वो वन टाइम है। ऑल्दो देर आर अथॉरिटीज डीजीजीआई में वो ये कह रहे हैं कि इसको हमने ये रिकमेंड किया है कि आप कॉन्टिन्यूटी में अप्लाई करें, तो वो स्टैंड गलत है अकॉर्डिंग टू मी। आज जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग वन टाइम ही टैक्स लग सकता है जो उन्होंने वैल्यूएशन प्रिस्क्राइब करी है, अगर उसको एक बार के लिए मान भी लिया जाए तो, बारिंग ऑल दीज लीगैलिटीज व्हिच वी डिस्कस्ड, इफ वी हैव टू कंप्लाई तो केवल एक बार इनवॉइस रेज करके भी टैक्स डिपॉजिट करना है। ऐसा नहीं है कि एवरी ईयर आपको करना है। हाँ, रिन्यूअल जो आप कह रहे हैं आई थिंक वो एक ही बार, क्योंकि गारंटी एग्जीक्यूट की गई है तो रूल 28 सब रूल 2 में वो एक ही बार आपको एक गारंटी के रिस्पेक्ट में टैक्स देना है। इस पे भी बेसिकली मतलब क्लैरिफिकेशन का वेट है सिद्धांत जी। हाँ। बेसिकली कुछ मैं आपको एक दो चीजें एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सभी प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पर। जैसे टर्म लोन है, टर्म लोन का एक टर्म होता है स्पेसिफिक, तो उसके लिए अगर हमने कोई कॉर्पोरेट गारंटी दी, इट वुड लाई फॉर द टर्म ऑफ द टर्म लोन एंड इट इज नॉट रिन्यूड ऑन अ ईयरली बेसिस। राइट। सो वी एग्री विद दिस व्यू कि आपने जब दी वो चलेगी 7 साल 8 साल, एग्री। But with regard to the CC limit, with regard to the working capital limits, which has to be renewed by the bank every year, in that case, they take the fresh guarantee basically. They do the documentation completely on a renewal also. So in that case, it would be considered on a yearly basis. So it is a basically more hurdle with regard to the working capital limit. I have discussed this in previous seminars also. So this need a clarification from the government side, so Yes. that what they instant they have to take to avoid the ambiguity. सिद्धांत जी आप कुछ कहेंगे इस पे? नहीं, आई एग्री। जहां पे रिन्यूअल इस तरीके से है कि वो एवरी ईयर डीम करता है तो वहां पे ऑल्दो राइट नाउ आई एम ऑफ द व्यू कि ये सस्टेन नहीं करेगा। मतलब लीगली कॉर्पोरेट गारंटी पे, जैसे अब सुप्रीम कोर्ट हैज कम इनटू yesterday article, इकोनॉमिक टाइम्स article is there that Supreme Court has come into play. They say that we will offer clarity on taxability of corporate guarantee in the times to come. So let us wait for the Supreme Court. हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस डिस्कशन में, काफी हमने वो कॉर्पोरेट गारंटी को डिस्कस कर लिया है जी। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो अमेंडमेंट्स पे हम थे, हमने पहले जो पान टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी, हाँ जी, क्वेरीज है। एक आकांक्षा जी की क्वेरी है, शायद हमने छोड़ दी है। आकांक्षा जी कह रही है गारंटी गिवन बाय डायरेक्टर इज आल्सो सब्जेक्ट टू जीएसटी, डायरेक्टर हैज नॉट चार्ज एनीथिंग। आकांक्षा जी ये जो क्लैरिफिकेशन आई थी ना, इसमें बड़े अच्छे से क्लैरिफाई किया गया है कि डायरेक्टर इज नॉट अलाउड टू चार्ज एनीथिंग फ्रॉम द आरबीआई इटसेल्फ फॉर द गारंटी गिवन टू द कॉर्पोरेट्स। सो इन that would be the case, accordingly they have clarified there is no GST on a guarantee given by a director to a company. Right, absolutely. So yeah, I think your query has been solved. एक अश्विन जी की query है, though it is not with regard to corporate guarantee, but अश्विन जी अभी हम उस topic पे आ रहे हैं with regard to the time limit, with regard to the assessments and all. We will discuss in detail about all these things. सिद्धांत जी आप कुछ कह रहे हैं? मूविंग फर्दर, जो एक अमेंडमेंट की गई, ऑल्दो इट हैज नॉट बीन ब्रॉट इनटू फोर्स, बट उसको टच कर लेता हूं मैं। फाइनेंस बिल 2024 which ultimately became Finance Act 2024, जो अमेंडमेंट मेजर की गई, that was with respect to input service distributor. They have made this provision mandatory. Once the council notifies, hopefully with effect from 1st of October, this provision will be made mandatory, and for companies who are having registrations in multiple states,
मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशंस आर देयर अंडर अ सिंगल पैन, तो उनको अपनी कॉमन इनपुट सर्विसेज, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रमोशन, जो वो पूरे ग्रुप के लिए लेते हैं एज अ होल, उसके लिए आईएसडी का रजिस्ट्रेशन उन्हें लेना मैंडेटरी हो जाएगा। और जो हम क्रॉस चार्ज के रूट में चलते थे अभी तक, वो चीज को उन्होंने खत्म कर दिया है बाय अमेंडिंग सेक्शन 20 through this Finance Act 2024, but this provision is yet to be brought in force, अभी applicable नहीं है। तो ये एक अमेंडमेंट है मेजर इसमें जो कि इसमें हाँ सिद्धांत जी जी 2-3 क्वेश्चन खड़े होते हैं। जी दो कंसिडरिंग कि आईएसडी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है, फॉर एग्जांपल, in that case what we are feeling, one of my client is having the corporate office in Gurgaon. He is establishing the corporate office. For that he is buying many inputs, like computer is covered in an input, it is not an input services. So Right. he is buying many capital goods, though computer is also a capital good. Stationery they are buying, they are doing many expenditure which are related to the business, which are not covered under the definition of input services. For that part, still the cross charge would be, which would need to be have been implemented. देखिए अगर How आपका the how that credit would be passed on to the other branches. So that concern government need to clarify, because it create a more burden with related to the compliances which the government people are doing through a cross charge. So we want a discussion on this also, Siddhanji, that what we should think of this thing. देखिए आईएसडी का कंसेप्ट बड़ा क्लियर रहा है सर्विस टैक्स के पीरियड से भी, ऑल्दो सर्विस टैक्स में इतना प्रोमिनेंट नहीं था, बहुत कम एंटिटीज इसे अप्लाई करती थी, बट जीएसटी में अब उसे मैंडेटरी करने के बाद इट विल गेन प्रोमिनेंस। ISD as a mechanism can be used only for the common input services। अब जहां आपकी पॉइंट ये आता है कि ये कॉर्पोरेट ऑफिस है जिसका अपना खुद का कोई सप्लाई नहीं है, बट इट इज असिस्टिंग ऑल दी अदर ब्रांचेस जहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बिजनेस मॉडल, बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। तो ये जो कॉर्पोरेट ऑफिस है जो कंप्यूटर्स प्रोक्योर कर रहा है, लेट अस से फॉर कॉमन लोकेशन अकाउंटिंग, या जो भी डेटा कीपिंग के लिए और भी कई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ले रहा है, तो इसको आईएसडी के मैकेनिज्म के थ्रू नहीं, यहां पे क्रॉस चार्ज ही किया जा सकता है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सर्विसेज। तो बिल्कुल इस आईएसडी उन्होंने मैंडेटरी कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि क्रॉस चार्ज खत्म हो जाएगा। दे आर बोथ, दे विल बोथ गो हैंड इन हैंड। क्रॉस चार्ज भी कंटिन्यू करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, और कॉमन इनपुट सर्विसेज के केस में आईएसडी विल कम इनटू प्ले। तो जो बात है कि हम गुड्स प्रोक्योर करके लेके आ रहे हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में, उस पे आईएसडी हम नहीं अप्लाई कर सकते। डेफिनेशन बड़ी क्लियर है कि कॉमन इनपुट सर्विस होनी चाहिए वो, तो वहां पे क्रॉस चार्ज ही करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल, तो वही मैं ये कह रहा था कि गवर्नमेंट को बेसिकली द आई एम स्टिल डोंट गेट द पर्पस व्हाई दे आर मैंडेटरी डूइंग दिस आईएसडी फॉर्म, दो I think this would be more good if they give some mechanism and a calculation method in the cross charge itself to distribute the ITC, instead of making it mandatory for with an ISD registration complete separate। 13 तारीख को आपको रिटर्न भेजनी है, उसकी कैलकुलेशन आपको डिफरेंटली करनी है, उसकी आपको फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस की टर्नओवर उठानी है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस। अंकित जी देखिए, इसमें एक जो पॉइंट है ना, ये हो सकता है द काउंसिल इट्स एंटिसिपेटिंग कि अगर आपको क्रॉस चार्ज वो करने को कह दे, मतलब आईएसडी को मैंडेटरी नहीं करते ना, और मैं अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स एज एन एंटिटी, मैं पूरे मैकडॉनल्ड्स ग्रुप का, मैकडी का एक ब्रांड प्रमोशन करता हूँ पैन इंडिया बेसिस पे, कॉर्पोरेट ऑफिस को वो बिल आ जाता है। अब नाउ व्हाट कॉर्पोरेट ऑफिस कैन डू इज कि जहां पे मेरी जिन स्टेट्स में ज्यादा लाइबिलिटी आ रही है, वो बिलिंग उस तरीके से अपोर्शन करने लगेगा if ISD is not made mandatory over here, क्योंकि ISD में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला है जो आपको फॉलो करना ही है, विच इज टर्नओवर बेस्ड। तो हर स्टेट को, हाँ, तो दैट टू ऑफ द लास्ट ईयर, तो वो एक रैशनल बेसिस, जो भी उन्होंने फॉर्मूला अपने विजडम में रैशनल समझा, उसके बेसिस पे एटलीस्ट टैक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा और वहां पे क्रेडिट ले लिया जाएगा। बट क्रॉस चार्ज के रेस अगर वो कर देते तो एक लिबर्टी जरूर आ जाती है टैक्स पेयर के पास कि वो अपने हिसाब से बिलिंग करना लग जाए और टर्नओवर को एक बेसिस ना माने।
तो दैट समवेयर इट कैन बी कि भाई प्रॉपर टैक्स की, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो हर स्टेट को जितना वो टर्नओवर जनरेट कर रही है उस हिसाब से टैक्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाए थ्रू दिस आईएसडी मैकेनिज्म. दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे हैव मेड दिस मैंडेटरी इन द टाइम्स टू कम. I agree with the view. सर्टेनली Siddharth. उसके साथ चैलेंजेस आएंगे, बट देखिए ये चैलेंजेस क्या है कि ये उन्हीं एमएनसीज में आएंगे जहां पे कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है. मैं अगर कहता हूं कि अगर किसी के पास 2 या 3 रजिस्ट्रेशन भी है, वो भी आईएसडी के रूट को अवॉइड कर सकता है. आप अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे बिल ले लो ना. दिल्ली के लिए अलग ब्रांडिंग प्रमोशन का बिल ले लो, हरियाणा के लिए अलग ले लो, राजस्थान के लिए अलग ले लो. बट हाँ, जहां पे आप 20 स्टेट में रजिस्टर्ड हैं, एक एक स्टेट में 2-2 जगह रजिस्टर्ड हैं, वहां पे उनको वो आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेके ही इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा. So देखते हैं, let's see. Some clarification is basically we are Definitely requesting it the will come, government it to will give. come. हाँ, it will come and आएंगे the अभी law will be mandatory अभी implemented. implement भी नहीं हुआ. जी जी. So let's move forward with regard to Yes. the basically let's have the assessment topic and with regard to the time limit, Siddharth ji. And आप इसको थोड़ा सा डिस्कशन को, असेसमेंट्स को डिस्कस करते हुए 10-15 मिनट में फिर क्वेरीज पे आ जाते हैं. आई फिर थिंक जो queries पे आ डिस्कशन जाते होगा हैं. वो Yeah. असेसमेंट रिलेटेड क्वेरीज ही आएंगी. तो जी देखिए, जी. अगर मैं इसको टू स्टार्ट विद, तो हमने देखा एक लेवल ऑफ शो कॉज नोटिसेस एज प्रोफेशनल्स जो सर्विस टैक्स में इशू होते थे बाय द सेंटर, और एक हमने टाइम देखा 30 सितंबर 2023 जिस दिन शो कॉज नोटिस इशू हुए अंडर सेक्शन 73 बाय द स्टेट जीएसटी अथॉरिटीज, और वो इस तरीके से इशू हुए कि पूरे एजुडिकेशन सिस्टम की सैंक्टिटी को उन्होंने खत्म कर दिया. दे हैव कंप्लीटली इरोडेड दैट. अगर जजमेंट्स देखे जाएं, वृंदावन बेवरेजेस, देयर आर मेनी अदर जजमेंट्स एज वेल of the Honorable Supreme Court which say that show cause notice is the foundation, is the foundational document through which department has to build up its case. और सारे एलिगेशंस उस शो कॉज नोटिस में एक रीजनड बेसिस पे स्टेटेड होने चाहिए कि जो कि जिससे कि आप डिमांड रिकवरी इनिशिएट कर सकें, डिमांड अपनी प्रपोज कर सकें अगेंस्ट द टैक्स पेयर. वेयर एज व्हाट वी हैव सीन इज कि वो शो कॉज नोटिस जो 30 सितंबर 2023 को इशू हुए, फिर 31 दिसंबर को अगले साल 18-19 के लिए इशू हुए, और अब 15 दिन बाद 30 मई तक उन्होंने 19-20 के लिए भी इशू करने, कंप्लीटली बेस्ड ऑन अजम्पशंस. अगर इस शो कॉज नोटिस को कोई टेक्निकली भी डिफेंड करने जाए ना, तो ट्रिब्यूनल के लेवल से दे विल विन, नॉट लोअर देन दैट, बट ट्रिब्यूनल तक उसको अगर कंटेस्ट करेंगे तो विदाउट सबमिटिंग एनी सिंगल पॉइंट ऑन मेरिट ये शो कॉज नोटिस स्क्वॉश किया जाएगा, क्योंकि शो कॉज नोटिस कंप्लीटली बेस्ड ऑन अजम्पशन कि 2A में ये क्रेडिट आ रहा है. स्टैंडर्ड आपके पॉइंट्स हैं 2A में जी 17(5) का नजर आ रहा है, 2A में कैंसल डीलर का नजर आ रहा है, 2A में 3B नॉन फाइलर का अरे भाई 2A तो सामने वाले ने जो फाइल कर दी वो 2A में नजर आ रहा है, बट ये थोड़ी है. देयर आर एन नंबर ऑफ केसेस जहां पे वो क्रेडिट 3B में लिया ही नहीं गया है. देयर आर, सुमित जी, देयर आर पीपल जिसने ₹1 का भी क्रेडिट 3B में नहीं लिया, बट 2A में करोड़ों रुपए का क्रेडिट आ रहा है, तो आपने डिमांड बना दी. वो शो कॉज नोटिस बेचारा रिप्लाई नहीं कर पाया, ओवरलुक हो गया, तो यही हो रहा है सिद्धांत जी. So basically what is going on with regard to show cause notice, कि शो कॉज नोटिस जो हमने देखे हैं वो बिल्कुल कंप्लीट वेग तरीके से इशू किए गए हैं. सिस्टम ने जो दिया इतना बर्डन था. मैं मतलब कुछ स्टेट्स में स्पेसिफिक with regard to the state's authority has issued the show cause notices like a printout by a system. राइट. उन्होंने सिंपल एक लाइन लिखी कि that the reply is not satisfactory and accordingly this is the point of the demand in the DRC 01 कि 2A में और 3B में ये डिफरेंस है तो इतना ITC की डिमांड, 3B में और 1 में इतना डिफरेंस है तो आउटपुट की डिमांड, और बेसिकली HSN में ये प्रॉब्लम है तो 17(5) की डिमांड. Without knowing the nature, without anything, they have issued the show cause notices. इवन कुछ जगह पे तो ये भी देखा गया है एडवांस एडजस्टमेंट को उन्होंने लेस करने के बजाय ऐड करके डिमांडें निकाल. मैंने खुद एक अपील फाइल करी है सिद्धांत जी अभी. बिल्कुल. रेक्टिफिकेशन का STBA ने अच्छा खासा दिल्ली के अंदर
बाइकआउट किया डिपार्टमेंट का, आफ्टर दैट द इंस्ट्रक्शन हैज बीन इशूड, बट हाउ मच % दे हैज बीन फॉलोड? आई डोंट थिंक 5% में भी कुछ हुआ है. Absolutely. They are busy with the assessment. They have said कि हम rectification करेंगे कब? You come in June. You come in May. So, and the appeal is time barred, and appeal is time barred up to 30th April with regard to 17-18. So, there is a basically hardship with a businessman with regard to the notices issued by the department, but some are taking the enjoyment also. जिन्होंने 9 और 1 और 2A मैच करा दिया, चाहे अंदर कुछ भी किया, उनकी असेसमेंट क्लियर होके वो बाहर हो गए अभी के लिए. सेक्शन 74 बचा हुआ है अभी, बट अभी के लिए बाहर हो गए. और मैं बेसिकली जिसकी भी असेसमेंट कराता हूं, बिकॉज सिद्धांत जी ऐड करेंगे, 73 एक पार्ट है, दो 74 बिना विदाउट रीजन दे कैन नॉट इशू द नोटिस, बट 74 स्कोप इज ऑल्सो देयर. क्योंकि अभी जिस तरीके के नोटिस आए हैं, उन्होंने खाली 2A से मैच करके डिमांड की बात करी है, या कैंसिल डीलर की बात करी है, जिसको अलाउ भी करा गया है अगर उसकी रिटर्न फाइल्ड है. So 74 is still there. We will discuss in detail that what are the time limits up to when the 74 notice has been issued is allowed to be issued by the department. So Siddhant ji, please, आपकी voice break हो गई थी. Now continue करें please. Right. There was some network issue. तो हम यही बात कर रहे हैं जो अंकित जी कह रहे हैं कि 2A के बेसिस पे उन्होंने मेरे सारे ITC को डिनाई कर दिया. आप पूरे लॉ को पढ़ के मेरे को ये बता दो कि GSTR 2A की लीगल सैंक्टिटी कहाँ है. पूरे एक्ट में कहीं GSTR 2A का रेफरेंस है? देयर इज नो प्रोविजन अंडर द लॉ व्हिच सेज दैट द असेसी हैज टू लुक आफ्टर GSTR 2A फॉर क्लेमिंग द क्रेडिट. पहली बार जो सेक्शन लाया गया वो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज AA के थ्रू लाया गया. वो कब से आया? 1 जनवरी 2022 से. हमारे ऊपर लाखों शो कॉज नोटिस इशू हो गए. कौन से पीरियड के? 17, 18, 18, 19, 19, 20. अभी तो वो पीरियड ही नहीं आया जिसमें कि GSTR 2A को एक लीगल सैंक्टिटी दी गई, एंड यू आर क्रिएटिंग डिमांड्स. तो ये शो कॉज नोटिस कैसे सस्टेन करेंगे जब लॉ में प्रोविजन ही नहीं है GSTR 2A के लिए? बट यस, उसको कोप अप करने के लिए उन्होंने एक सर्कुलर भी इशू कर दिया 183 कि भाई कंफर्मेशन ला दो. अब आप कंफर्मेशन कैसे भी ला दो, बस ला दो तो आपका केस ड्रॉप हो जाएगा. कोई नहीं देख रहा कि वो वैलिड कंफर्मेशन भी है, फोर्स्ड है क्या नहीं है. तो इस तरीके से जब GSTR 2A की कोई लीगल बैकिंग नहीं है, उसके बाद सरकार ने एक सर्कुलर आ दिया. मैं खुद एक विजयवाड़ा में कमिश्नर अपील सर के पास बैठा था. ही रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इन अ केस. तो मैंने ये कहा कि सर लॉ में सेक्शन, मेरे को आप प्रोविजन तो बताओ GSTR 2A का कोई, आप कोट कर दो, मैं डिमांड मान लूंगा अपनी. तो वो कहते हैं कि प्रोविजन नहीं है. एंड वी आरसेल्व्स हैव बीन स्टेटिंग दिस टू द काउंसिल कि आप ये शो कॉज नोटिसेस इशू करने के लिए क्यों रिकमेंड कर रहे हैं. बट वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम देखें तो देयर आर मेनी केसेस वेयर इन द असेसीज हैव डिपॉजिटेड द डिफरेंस. तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के भी फेवर की बात हो रही है, रिकवरी हो रही है. तो देखिए, जो फियरफुल टैक्स पेयर है वो तो उसको पे कर जाएगा, या कहीं छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं तो वो उसको पे कर जाएंगे. बट अगर हम अपनी लीगल रेमेडीज से अवेयर हैं और डिफरेंसेस वर्थ फाइटिंग हैं, तो ये जो जितनी भी चीजें हो रही है ना 2A के बेसिस पे, एक अजम्पशन पे कि उसने क्रेडिट ले लिया होगा, मैंने लिया ही नहीं है, या 2A का कोई प्रोविजन नहीं है, बट 2A के बेसिस 2A के बियॉन्ड जितना है उतना क्रेडिट डिनाई कर दो. एक और चीज ले आए, टेबल 8A. 17-18 की तो टेबल 8A रिफ्लेक्ट ही 3 साल बाद हुई थी. भाई टेबल 8A GSTR 9 में आती है. 17-18 की आपने GSTR 9 की ड्यू डेट क्या थी? जनवरी 2020, 5 फरवरी 2020. तो वो तो टेबल ए बहुत लेटर स्टेज पे रिफ्लेक्ट हुई. आज आप कहते हो कि टेबल 8A में जो नहीं आ रहा उसको वापस कर दो. कैसे वापस कर दो? क्यों वापस कर दो जब लॉ में कोई प्रोविजन ही नहीं है? तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जिसके लिए मैंने कहा कि इन शो कॉज नोटिस को अगर ट्रिब्यूनल तक कंटेस्ट किया जाए तो नॉट इवन मेकिंग अ सिंगल डिफेंस ऑन मेरिट्स आप इस शो कॉज को क्वॉश करा सकते हो. शो कॉज के ऊपर बहुत सारे केस लॉज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जहां पे उन्होंने ये कहा कि एक शो कॉज नोटिस अजम्पशंस पे इशू हो ही नहीं सकता.
और अगर ऐसा शो कॉज नोटिस है तो वो इनवैलिड इन द आईज ऑफ लॉ है, बट डिपार्टमेंट इशू करे जा रहा है। इसीलिए तो ये शो कॉज नोटिस ज्यादातर स्टेट से आ रहे हैं। आपने देखा क्या कि सेंटर का कोई शो कॉज नोटिस है? ऐसा कोई एक आध केस में रहा होगा, बिकॉज सेंटर नोज की सैंक्टिटी क्या होती है शो कॉज नोटिस की। बट स्टेट वो एक वैट की तरह जो पुराने तरीके से असेसमेंट करते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से चले जा रहे हैं, और पैन इंडिया ये नोटिस इशू हो रहे हैं। सो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट अंडर जीएसटी Actually कि में इस तरीके के सिद्धांत शो जी, कॉज नोटिस इशू किए जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। बेसिकली कुछ स्टेट्स में जैसा आपने कहा कि जो सर्टिफिकेट दिए गए वो फाइल में लगा लिए, कुछ स्टेट्स में मेरा एक्सपीरियंस है सर, ऑफिसर बियॉन्ड द सर्टिफिकेट भी गए। हम्म दे हैव इवन चेक्ड कि दैट अगर उसने लिखा कि जी B2C में डल गया था हमारा, they have checked what the B2C turnover is, that is more than what is your invoice amount. So I have received the show cause notice, but that is not in Delhi. So तो और दूसरी चीज क्या है सर, देखिए ना, आप और हम कब से कहते आ रहे हैं, डे 1 से कहते आ रहे हैं 2A की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। सारे हमारे सीनियर्स कहते सर आ रहे हैं, हम कह रहे हैं, सीनियर भारतीय कहते एयरटेल आ में रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बात। मैं भारतीय वही कह एयरटेल रहा में हूँ, सुप्रीम कोर्ट लॉ ने कह रहा कहा है। कि 2A हम की क्यों कह कोई, रहे हैं? हाँ 2A क्योंकि लॉ कह लॉ रहा में तो कहीं है नहीं, पोर्टल पे आपने बना दिया, उसको आप कह रहे हो फॉलो करो। तो 2A, सुप्रीम कोर्ट सेज 2A इज ओनली अ फैसिलिटेशन टूल, इट कैन नॉट डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ द क्रेडिट। और ये सब छोड़िए, आई थिंक मई या अक्टूबर 2018 की बोर्ड की अपनी प्रेस रिलीज है जहां पे उन्होंने ये कहा कि कोई डिमांड 2A के बेसिस पे नहीं क्रिएट की जाएगी। 2A के बेसिस पे ऑफिसर इंक्वायरी इनिशिएट जरूर कर सकता है, मुझसे क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि भाई ये डिफरेंस क्यों है, मैं जवाब दूंगा, लेकिन आप डायरेक्टली शो कॉज नोटिस इशू नहीं कर सकते 2A के बेसिस पे। शो कॉज नोटिस में आपको सारी अपनी फाइंडिंग्स को कल्मिनेट करके एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देना है जिसके बेसिस पे आप एलिगेशन लगा रहे हो। आप 2A के बेसिस पे एलिगेशन कैसे लगा सकते हो कि ये इनएडमिसिबल आईटीसी है? तो ये कई सारी चीजें हैं जो कि आगे ऑलरेडी जजमेंट्स आ रहे हैं। कैलकाटा हाईकोर्ट हैज ऑलरेडी सेड कि आप 2A के बेसिस पे कोई क्रेडिट नहीं डिनाई कर सकते। जो लोग रिट पिटीशन में गए हैं उनको फेवर मिला है, बट रिट पिटीशन का एक नुकसान क्या है कि हाईकोर्ट ने आज ही कह दिया ऑफिसर को कि मैं आपको रिमांड करता हूं, अब आप फिर से शो कॉज दे दो। ऑन दी अदर हैंड, अगर यही एसएससी थ्रू अपीलेट रेमेडी ट्रिब्यूनल तक जाएगा तो ट्रिब्यूनल उस टाइम पे कहेगा कि शो कॉज नोटिस बेकार है, और दैट मोमेंट इट हैज बिकम टाइम बार्ड, अब नया इशू नहीं कर सकता। तो ये कई सारी चीजें हैं जो कि लीगल रेमेडीज हैं जो कि एक्सरसाइज करनी चाहिए जहां वर्थ फाइटिंग है। सो बेसिकली वही चीजें हैं कि जो 2A और बहुत सारे शो कॉज नोटिस आए हैं, अपीलें खूब फाइल हुई हैं सर। सिद्धांत जी आपने भी काफी करी बिल्कुल। होंगी, मैंने भी काफी करी है, और वो अपील बनाते हुए ऐसा लग रहा था कि हम असेसमेंट करा रहे हैं, अपील नहीं बना रहे। हम्म क्योंकि बिकॉज बहुत सारे शो कॉज नोटिस ऐसे ही थे कि जिनमें असेसमेंट ही नहीं हुई। दे राइट हैव इवन नॉट डन द असेसमेंट। जैसे सर, रूल they have made a single line कि यस, reply not found to be satisfactory। सिंपल तीन चार मैटर थे उनके रूल फ्यू 42 डेज की बैक डिमांड। ओनली, अंकित जी आप नोट करेंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है बग्गा लिंक डीलर्स के रिस्पेक्ट में, wherein High Court has very strongly come on it कि भाई ऑफिसर को पूरा रीजन स्टेट करने हैं अपने ऑर्डर में। सेक्शन हाँ हाँ 75 बिल्कुल सबसेक्शन बिल्कुल 6 क्लियरली सेज दिस कि यू हैव बिल्कुल व्हाटएवर है। फाइंडिंग यू हैव टू मेक इन योर ऑर्डर, गिव अ रीजनड फाइंडिंग ऑन इट। आप ऐसे नहीं कह सकते नॉट सेटिस्फैक्टरी, व्हाट इज दिस, भाई आप रीजन तो बताओगे ना क्यों सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अगला बंदा अपील कैसे फाइल करेगा, डिफेंस कैसे देगा अपना? तो बिल्कुल जी इस तरीके के ऑर्डर्स ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं। हाँ जी, अभिषेक बिल्कुल। जी कुछ पॉइंट रेज करना चाह रहे हैं। हाँ जी, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब यू आर राइट, इस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं राइट और हमारे क्लाइंट्स को प्रेशराइज भी करा जा रहा है कि आप पेमेंट कराएं, क्योंकि जो ऑर्डर आया हम लोगों ने उसके इनवॉइसेस भी फाइल करे कि वी हैव द ओरिजिनल इनवॉइसेस, वी हैव द फोटोकॉपी इनवॉइसेस, और हमने फाइल करवा के वहाँ पे दिया नोएडा जीएसटी में, बट दे डिड नॉट कंसिडर इट, और उन्होंने ऑर्डर बना करके टैक्स डिमांड निकाल के इंटरेस्ट लगा के सब कुछ लगा के भेज दिया। दे डिड नॉट इवन कंसिडर द रिप्लाई। सो दिस इज द एस्पेक्ट। और अभी हमारे को एक नया नोटिस आया है, अभी कल ही आया है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 में फाइनेंशियल ईयर में नोटिस में वो ये लिख रहे हैं कि हमने आपका GSTR 9 चेक करा और GSTR 9 के हिसाब से उन्होंने हमारा एक डिमांड निकाली, क्योंकि हमारा क्लाइंट दोनों तरीके की सर्विस देता है। हमारा क्लाइंट टैक्सेबल सर्विस भी देता है, नॉन टैक्सेबल सर्विस भी रूल देता है। 42 लगा दिया 42 सर अडॉक। हाँ जी,
तो बड़ा कॉमन उन्होंने है सर। हाँ एडॉक लगा दिया उसने, और परसेंटेज ईयर बाय ईयर निकाल दी। मैं मंथली परसेंटेज निकाल करके फाइल करवाता हूँ, उसने कुछ नहीं सर, एडॉक उसने परसेंटेज निकाल उसने एडॉक तो ये भी परसेंटेज। नहीं देखा जो डायरेक्टली रिलेटेबल टू टैक्सेबल है क्या है, वो डायरेक्टली रिलेटेबल टू एग्जेम्प्ट है, उसने रूल देखा ही नहीं ना सर। वो तो सॉफ्टवेयर ने क्या किया, टोटल टर्नओवर डिवाइडेड बाय एग्जेम्प्ट टर्नओवर इनटू यस, इनपुट टैक्स क्रेडिट और अकॉर्डिंगली डिमांड निकाल। और निकाल दी। अब इस केस में हमारी तो बहुत सारे इनपुट्स थे जिसका 100% क्रेडिट हमें मिलेगा, बिकॉज वो 100% Exactly. टैक्सेबल में जा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल अब मिलेगा। उसने तो 4A वाली फिगर उठा ली है, 3B से जो लिखी होती है और 9 से। अब उसके अंदर हम उस टाइम वो नोटिफिकेशन नहीं आया था जो 22 में आया है कि आपको पूरा का पूरा क्रेडिट पहले अवेल करना है 4A में, उसके बाद नीचे आप उसको रिवर्सल करेंगे एवरी मंथ। This clarification is there in 2022, not there at that time when their return was filed. तो the return जहां पर हमने केवल नेट अमाउंट लिखा हुआ है 4A के अंदर, तो अब वो 4A का नेट अमाउंट तो ऑलरेडी आफ्टर रिवर्सल है, और उसने उसके नेट को फिर दोबारा से रिवर्स कर दिया, जैसे अंकित जी कह रहे हैं कि उसको एडॉक बेसिस पे कर दिया। तो अब इन सच केस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड गोइंग बाय द सिस्टम। तो आप लोग क्या एडवाइस करते हैं, सिद्धांत जी आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर पहला डिफेंस तो आप ये लीजिए, मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्योंकि मुझे लग रहा है हाँ शायद जी, कोई अच्छी नेटवर्क आ रही है। हाँ, तो आ सर रही है जी। ओध शुगर मिल्स सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि कोई भी शो कॉज नोटिस किसी भी अजम्पशन पे क्रिएट नहीं हो सकता। तो सर सबसे एक बार पहली नाम बात तो बताएंगे यहाँ दोबारा, पे सॉरी। सर शुगर ओध मिल्स, शुगर मिल्स, ओध शुगर मिल्स, BODH, OUDH। OUDH, शुगर शुगर मिल्स, हाँ ओके। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी अपनी टीम से कहूंगा कि वो आपको एक मैं साइटेशन भी नोट करा दूंगा बाय द एंड ऑफ हाई कोर्ट दिस। का है? हाँ नहीं नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट का है। अच्छा, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का ने है। ये कहा कि कोई भी शो कॉज नोटिस अजम्पशन पे इशू हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे मल्टीपल अजम्पशंस हैं। पहली अजम्पशन कि यस, आपने जो सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई रिपोर्ट करी है उसके रिस्पेक्ट में कोई कॉमन आईटीसी पर्टेन करता भी है या नहीं करता है। उसने सारे आईटीसी को कॉमन आईटीसी मान लिया है। ट्रू ट्रू। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको डिफेंस देना ही मुश्किल हो गया, जो आप खुद कह रहे हो। तो अजम्पशंस पे जब भी शो कॉज नोटिस इशू होता है तो सुप्रीम कोर्ट सेज कि यू शिफ्ट द बर्डन ऑन द असेसी टू मेक अ डिफेंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल, एंड सच अ शो कॉज नोटिस इज बैड इन द आईज ऑफ लॉ, इट कैन नॉट बी एजुडिकेटेड। तो ये डिफेंस तो आप लें। अब विदाउट प्रेजुडिस में आप अपने मेरिट में अगर जो चीजें सबमिट करना चाहते हैं कि भाई मैंने जो क्रेडिट लिया है उसका बुक्स ऑफ अकाउंट में ये डिस्क्रिप्शन है जो कि मेरी इस सर्विस को पर्टेन ही नहीं करता है, या वो एक्सक्लूसिवली मेरे टैक्सेबल बिजनेस को पर्टेन करता है, उस तरीके से आप अपने डिफेंस को सबमिट करें। और सर इस केस में ना हमारे को ASMT 10 भी नहीं दिया उसने इस बार, सीधा शो कॉज आया है। सर देखिए ये क्वेरी भी आई थी, शायद आपने पोस्ट की होगी कि हाँ ASMT मैंने 10 लिखा था। ASMT 10 is it a condition precedent to issue a show cause notice, मतलब शो कॉज से पहले क्या जरूरी है ASMT 10? देखिए लॉ ऐसा नहीं कहता। ASMT 10 में अगर कोई आपके एक्सप्लेनेशन अनसेटिस्फैक्टरी होंगे तो शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा, बट शो कॉज नोटिस इंडिपेंडेंटली इशू किया जा सकता है विदाउट प्रायर ASMT 10। बट हैविंग सेड दिस, शो कॉज नोटिस में जो पहले भी इंफेसाइज किया, जब भी इशू किया जाएगा तो वो एक रीजन्ड डॉक्यूमेंट होगा जिसमें कि प्रॉपर इंक्वायरी के बेसिस पे जो भी फाइंडिंग्स आई ऑफिसर की उसके बेसिस पे वो एक एलिगेशन लगा रहा है। वेयर एज जो शो कॉज नोटिस इशू किए गए हैं उसमें केवल अजम्पशंस के बेसिस पे विदाउट एनी प्रायर इंक्वायरी शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया है। तो देयर आर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स विच से कि डिपार्टमेंट शो कॉज नोटिस में इशू को प्री जज नहीं कर सकता है, उसको एक प्रॉपर इंक्वायरी करनी है, उसके बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुंचेगा जहां पे वो शो कॉज असेसी को इशू करेगा कि भाई आप कारण बताओ कि ये टैक्स आपसे क्यों ना लिया जाए। तो दैट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन assumptions, दैट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन presumptions, दैट कैन नॉट प्री जज द इशू। तो इस पे अलग 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 जजमेंट्स हैं, कई सारे जजमेंट्स हैं। तो राइट, ये और इसके अंदर मैं देख भी रहा था, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर दिया, प्लीज प्लीज गो जी अहेड। हाँ, तो ये हमें जरूर अपने डिफेंस में लेने चाहिए, रिप्लाई में भी लेने चाहिए, अपीलेट अथॉरिटीज के आगे भी लेने चाहिए कि इस तरीके के शो कॉज नोटिस को विदाउट गोइंग इनटू मेरिट्स इनवैलिडेट करार किया जाए। यस दे हैव गिवन दिस ओथ शुगर एक मिल्स। मैं ये सर चैट बॉक्स में आपको मैंने साइटेशन दे दी है, 1978 का जजमेंट है ये, शो कॉज की बेसिस को
एलैबोरेट करता है सेंट्रल एक एक्साइज मैंने अभी लॉ। आपको केस लॉ भी भेजा इसके अंदर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का। इसके अंदर जी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बोला कि आपको ASMT 10 इशू करना है, और उन्होंने वो भी कहा कि ये एज पर सेक्शन भी मैंडेटरी है, बिकॉज इट कंडक्ट्स द इंक्वायरी, जैसे सिद्धांत जी आपने बताया। तो जब इंक्वायरी कंडक्ट नहीं हुई तो रीजंस तो आ ही नहीं सकते, रीजंस कैन नॉट बी derived without the inquiry, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। and it provides us the first level of stage where we can fight that these are the actual facts. Now we have not been given the opportunity to present the facts. They have Exactly. just written the show cause, और शो कॉज से बहुत हैवी अमाउंट्स के आ रहे हैं, विदाउट बेसिस हैवी अमाउंट्स के शो कॉज आ रहे हैं, क्लाइंट घबरा जाता है उतने अमाउंट देख के। एग्जैक्टली क्लाइंट घबरा जाता है और डिपार्टमेंट ऑफिशियल खुश हो जाता है कि इतनी बड़ी डिमांड निकाल दो कुछ भी करके, और फिर हम सब ने देखा ही है कि कैसे असेसमेंट हुई है स्टेट अथॉरिटीज के आगे। उनको तो ये समझाना यही बड़ा मैंने मुश्किल है सर, एम्फेसाइज, इसमें सर ये होगा, आप टू इसको मच डिफिकल्ट। लिटिगेट करना होगा सर, ये होगा। और जो लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट जा रहे हैं उनको हाई कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन जो लोग, और हाई कोर्ट में जाने का एक जो आई वुड से कौन है वो ये है कि हाई कोर्ट रिमांड बैक कर देता है केस को और वो री ओपन कर देता है प्रोसीडिंग्स को, ऑफिसर को अपॉर्चुनिटी दे देता है कि अब रीजनड बेसिस पे इंक्वायरी करके शो कॉज कर दो। तो वहां पे वो टाइम पीरियड जो है ना वो बाइंडिंग नहीं हो पाता। हाई कोर्ट अपनी एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शनल पावर इन्वोक करके वो आज भी 17-18 का नोटिस इशू करा सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू दिस हाई कोर्ट रूट, अगर आप अपीलेट रूट के थ्रू ट्रिब्यूनल तक ये आर्ग्यू करके चलोगे ना, तो ट्रिब्यूनल उसको शो कॉज को क्वॉश कर देगा, और ट्रिब्यूनल फिर ये भी नहीं कह सकता कि आज की डेट में आप री इनिशिएट करो प्रोसीडिंग। तो दैट वुड बी अ बेटर वे इन माय हम्बल ओपिनियन। सिद्धांत जी बिल्कुल एक टाइम बिल्कुल लिमिट बिल्कुल। डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल टाइम लिमिट डिस्कस कर लेते हैं। आप बताओ मेरे को, मैं जैसे आई कि हैव अभी द एक चार्ट क्वेरी भी रेडी। आई हुई थी जो मुझे बेसिकली डिस्कस भी कर लेते हैं क्वेरी को। दे आर सेइंग कि 17-18 का, अखिल जी आप प्लीज अनम्यूट करके डिस्कस कर लीजिए कि 17-18 का सर को मार्च 24 में मिला है ऑर्डर। ये तो पहले ही टाइम बार्ड है सिद्धांत ये जी। टाइम बार्ड है, आप चेक करें कि नोटिस 73 में इशू हुआ था या 74 में। अगर 74 में इशू हुआ था तो डिपार्टमेंट इशू कर सकता है मार्च में, बट अगर 73 में शो कॉज नोटिस इशू हुआ था तो बाय 31st ऑफ जनवरी 2024 दे हैड टू इशू दी ऑर्डर। अदरवाइज वो ऑर्डर टाइम बार्ड है। आपको कुछ, आप सिंपल अपील में एक ही ग्राउंड ले, दिस ऑर्डर इज हिट बाय लिमिटेशन। अगर इस 74 केस में है तो ये जो अपील फाइल कर सकते हैं। अगर 73 में था तो उसकी टाइम लिमिट मेरे अकॉर्डिंग निकल चुकी है, क्योंकि वो दिसंबर से पहले आ चुका होगा आपके पास। जनवरी, सर उस 31 केस जनवरी। में हाँ कंडोनेशन ऑफ जनवरी डिले सॉरी। फाइल करवा सकते हैं हम लोग। सर आपकी आवाज वी थोड़ी कैन गो अहेड कट विद द रही है। कंडोनेशन ऑफ डिले। नहीं सर, आपसे डिले हुआ है या डिपार्टमेंट से डिले हुआ है? सर हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी। कैन यू हेयर मी? एक्चुअली मैं थोड़ा केस को बता देता हूँ. Assessee has taken input in March 19, okay, for the year 17-18 due to certain reasons. ओके And officer, while checking their books in the year 18-19, they found out all this. And now the client has came and they are saying ki whether can we file an appeal against them, because it is all the invoices are genuine invoices and it has been uploaded in GSTR 2A or 2B, whatever as applicable. But only thing is they have Sasi has taken input in March 19 instead of March 18. So can we have some any kind of a remedy in this particular case? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पहले लिमिटेशन की बात करें तो आप मुझे ये बताइए ऑर्डर कब इशू हुआ है? ऑर्डर इशू हुआ है सर मार्च 24 अभी, फॉर द पीरियड 18-19 इशू हुआ होगा। या फॉर द पीरियड 18-19, बट ठीक दिस है, इन ITC pertains to 17-18. दैट इज योर केस। देखिए Yes, डिपार्टमेंट ने right. तो जो ऑर्डर इशू किया है वो ये मानते हुए किया है कि 18-19 का गलत आईटीसी है, क्योंकि 3B मार्च 18 में क्लेम किया हुआ, 3B मार्च 19 की में क्लेम किया 19 हुआ में क्लेम किया, है ना। एब्सोल्युटली. तो अब ऑर्डर इज नॉट हिट बाय लिमिटेशन एज सच। अब आपको अपील फाइल करनी चाहिए इसके अगेंस्ट यस. इमीडिएटली। और अपील में आपका ग्राउंड 17-18 का तो वैसे भी टाइम लिमिट मार्च 19 कर दिया गया था एक्सटेंड करके, 16/4 को भी तो एक्सटेंड कर दिया था बाय रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर। क्यों अंकित जी?
16(4) की टाइम लिमिटेशन फॉर द जी पर्पसेस ऑफ क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट 17-18 की 31 मार्च 19 कर दी थी ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसके तो लिए they have, सर्कुलर आया हुआ है। हाँ अच्छा, सर्कुलर भी इवन आया। अब तो अमेंडमेंट भी कर दी, अभी रूल तो में भी लॉ अमेंडमेंट कर दी में है, 16(4) लॉ में में अमेंडमेंट कर दी है, हाँ लॉ रिमूवल में ऑफ प्रोवाइसो ऐड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये तो डिपार्टमेंट गलत इंटरप्रेट कर रहा है लॉ को, इसको ये तो बाय लॉ ही आपका, आप अपील फाइल कीजिए इसके लिए। ठीक ठीक है सर, मतलब आपका थैंक यू सर, आईटीसी हिट बाय लिमिटेशन नहीं है, यू आर वेल विद, पहले साल के लिए 31 मार्च 19 कर दी गई थी डेट। ओके ओके। इनफैक्ट 31 मार्च 19 नहीं था, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019, सो व्हिच मींस 20th अप्रैल 2019 तक आप जब आपने 3B फाइल की होगी तो वो आईटीसी वेल विद इन द टाइम लिमिट है, और आप उसको अपील फाइल करिए, दैट विल बी क्वॉश्ड, नो डाउट। और हमने देखिए, हमने लिया भी है इसका फेवर, ऐसा है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लॉ बड़ा क्लियर है इस पॉइंट पे। राइट राइट। अच्छा, सेंट्रल वाले जल्दी समझ जाते, स्टेट वाले थोड़ा परेशान करते हैं, तो उन्हें समझाना पड़ेगा। अतुल जी आप प्लीज अनम्यूट करके डिस्कस करें, अतुल जी। वेल सर, सबसे पहले थैंक यू एंड गुड इवनिंग सबको। सर मेरा ये केस है, ये 2 पॉइंट्स हैं। तो एक तो एडीटी 01 इशू हुआ है, तो वो कब तक कवर कर सकते हैं एडीटी 01 में, मतलब तो एक AD पीरियड तो मैं एडीटी बता देता हूँ। 01 बेसिकली अभी तो एडजुडिकेट होगा, उसके बाद वो शो कॉज देंगे, उसके हाँ, बाद ऑर्डर बनेगा, तब उसके बाद आपका टाइम पीरियड नहीं, स्टार्ट कौन से होगा। पीरियड को कवर करेंगे उसमें मैं एडीटी बताता 01? हूँ। अंकित जी, वेदांत जी आप प्लीज ऐड एडीटी 1 कीजिए। इशू किया है, ऑडिट इनिशिएट किया है, मतलब अंडर सेक्शन यस 65, सर, यस सर। है ना। तो अब देखिए क्या है कि अंडर सेक्शन 73 तो ऑलरेडी टाइम बाद ऑडिट हैज टू कल्मिनेट इनटू अ शो कॉज नोटिस, ऑडिट की कोई इंडिपेंडेंट टाइम लिमिटेशन नहीं है, बट ऑडिट में जो भी डिमांड्स होंगी उसके लिए शो कॉज नोटिस इशू करना है, और शो कॉज नोटिस ऑलरेडी लिमिटेशन के अंडर है। तो शो कॉज नोटिस 17-18 का अंडर सेक्शन 73 हो नहीं सकता आज की डेट में, ना 18-19 का हो सकता 73 में, 30 मई तक 19-20 का भी होना है। तो जैसे ही ये डेट निकल गई 30 मई, तो 73 में आपका शो कॉज नोटिस 19-20 तक का तो हो नहीं सकता, ठीक है। 20-21 का हो सकता है, 20-21 की जो डेट आ रही है नोटिस की, वो 30 नवंबर पहुंचेगी, तो मैं ये मान लेता हूं 30 नवंबर तक डिपार्टमेंट को ऑडिट जी सर। कंक्लूड हो जाएगा, तो 20-21 का वो ऑडिट कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकली होता क्या है, जो आपका ऑडिट कर रहा है ना, वो ये कहेगा कि भाई मैं तो 74 में नोटिस इशू करूंगा, उसके पास ऑप्शन नहीं बचा ना, ही इज हेल्पलेस। तो व्हाट सेंटर यूज टू डू कि वो हर केस में ये कहते थे कि सिंस वी हैव आइडेंटिफाइड दिस डिमांड बाय कंडक्टिंग द ऑडिट, अदरवाइज द टैक्स पेयर वुड हैव इवेडेड ऑटोमेटिकली। तो ये 74 हम इन्वोक कर रहे हैं, और आपको नोटिस हम सर्व कर सकते हैं। अब बात आती है 74 में कब तक नोटिस इशू हो सकता है, तो सर 17-18 का शो कॉज नोटिस 74 में 5 अगस्त तक इशू हो सकता है 2024, 5 अगस्त 2024 तक 17-18 का, और 18-19 का 30 जून 2025। तो अभी 74 में तो टाइम है, लेकिन डिपार्टमेंट 74 में ही शो कॉज करेगा। सेंटर ने इशू किया होगा आपको एडीटी 1, राइट? यस। हाँ, तो फिर वो सेंटर तो क्या है ना, सेंटर ने शो कॉज 73 में करना ही नहीं होता, कभी नहीं किया उन्होंने। सर्विस टैक्स में भी यही करते थे, प्रोवाइजो 273 में इन्वोक करते थे। अब सर्वे उनके हिसाब से सारे केसेस फ्रॉड किए हैं, और यही इशू पे अगर आप ट्रिब्यूनल के जजमेंट देखोगे तो आई वुड से नॉट इवन 90% ऑफ द केसेस में डिपार्टमेंट अपने 74 को सस्टेन ही नहीं कर पाता। सर्विस टैक्स में 74 वाज इक्वल टू प्रोवाइजो 273, तो प्रोवाइजो 273 सस्टेन ही नहीं कर पाता था। अगर आप शो कॉज में केवल इतना लिखते हो कि क्योंकि हमने ऑडिट किया और ऑडिट में ये नॉन टैक्स इवेजन पाई गई, और अगर ऑडिट नहीं होता तो टैक्स पेयर इवेड कर जाता टैक्स को, दैट इज नॉट अ सफिशिएंट ग्राउंड टू इनवोक 74 को। हाँ हाँ, आप बेसिकली अतुल जी एक सेंटर सर, का इसमें एक छोटा सा सर, अगर कोई पॉइंट ऐसा है जिसका एएसएमटी 10 ऑलरेडी इशूड है, और वो अगर मतलब एएसएमटी 10 में हमने उस टाइम पे फाइट कर चुके हैं, तो उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा उसको। और बढ़िया सर, और बल्ले बल्ले, वो 74 में नहीं सस्टेन कर सकता, दिस इज अनदर ग्राउंड। जब नॉलेज में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी इन द नॉलेज ऑफ द डिपार्टमेंट, तो सप्रेशन का केस बन ही नहीं सकता। सप्रेशन का केस बना करके ही तो 74 में नोटिस करेगा। बट प्रैक्टिकली क्या होगा, ये ऑफिसर आपको शो कॉज 74 में इशू कर देगा, एंड यू विल हैव टू फाइट कि यहाँ पे ग्राउंड्स ही नहीं है 74 इन्वोक करने के। ठीक है सर, मैं समझ गया। सर अतुल Yes. जी बड़ा सिंपल, आपने देखा होगा सेंट्रल में वो पेनल्टी भी आपसे 15% की बात करते हैं सेक्शन 74 की। ठीक है। जो सेंट्रल वाले हैं वो 73 की तो बात ही नहीं करते, चाहे वो ऑडिट करें चाहे असेसमेंट करें, वो 74 की बात करते हैं।
और इसका जो मिलेगा, अच्छा शोकोस बनाने में वो इंटरेस्टेड नहीं होते, वो आपसे चाहेंगे कि आप पहले ही उसे क्लियर कर दें। विदाउट शोकोस इवन ऑडिट पैरा भी नहीं बनाना चाहते, वो चाहते हैं कि आप जमा कर दें। सही दे बात है। आर, जैसे सिद्धांत जी ने पहले डिस्कस किया अभी सेमिनार में, कि सेंट्रल शोकोस देते हुए 10 बार सोचता है, ये सच्चाई है। हाँ, लेकिन एक्सटेंडेड पीरियड इन्वोक करते हुए वो नहीं सोचता, इसलिए हाँ, वो केस हारता है टर्मिनल लेवल पे। सो जो 74 है वो तो उनके लिए बड़ा सिंपल सा है, वो 74 इन्वोक करते हैं, पेनल्टी लगाते हैं और ट्रिब्यूनल में हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। 74 मेरा और सिद्धांत जी का भी यही ओपिनियन होगा, इज नॉट दैट मच इजी टू इन्वोक 74 ऑन द व्यू जस्ट दे हैव फाइंड समथिंग यस which is a part of the reconciliation. यस यस, थैंक यू सर। देयर इज अ अच्छा, जजमेंट। एक छोटा हाँ जी, हाँ जी। दूसरा क्वेश्चन है। 16/4 में जो हम जिसने सितंबर 2020 के बाद जैसे रिटर्न प्राइस दी 1920 के, उसके लिए क्या स्टैंड लेंगे हम लोग? सर उसके लिए हमने स्टैंड नहीं लेना है, ऑलरेडी मैटर सब जुडाइज है बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट्स ने अगेंस्ट कर दिया है, 3 हाई कोर्ट्स ने अगेंस्ट कर दिया मैटर को, अगेंस्ट द टैक्स पेयर है। नाउ अपील हैज बीन फाइल्ड बाय बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो ओनली द कोर्ट विल टेल। और अगर मैं पास्ट की बात करूं तो वैट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ADLD ऑटोमोटिव के केस में ये टाइम लिमिटेशन वैट में भी होती थी, वहां पे उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना हुआ है और ये कहा है कि ये ठीक है, अगर लिमिटेशन लॉ में है तो वो सस्टेन करेगी। तो यहाँ पे हमारा केस जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा वही होगा। इवन ये भी है ना सिद्धांत जी की, जो टाइम लिमिट है किस चीज की, इन अवेलिंग द 3B, what would be the basically is the document to avail the ITC। जो सर्विस टैक्स में हम लोग जीता करते थे जजमेंट, हमने खूब जीते हैं केसेस जिसमें हम कहते थे कि बुक्स में ITC है, इट मींस दैट हैज बीन अवेल्ड। वो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे ना, मगर यहाँ लॉ में क्लियर लिखा है कि भाई आपको रिटर्न में लेना है। अच्छा, Yes. सबसे बड़ी प्रॉब्लम 16/4 की क्या हो रही है, जो सब लोग फेस भी कर रहे हैं, अभिषेक जी, नूतन जी, जितने भी हैंड रेज भी कर रखे हैं सबने, सब लोग फेस कर रहे हैं कि ये 16/4 ना अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं। एक 16/4 अप्लाई करते हैं, कहते 2A में लेट आया। एक 16/4 अप्लाई करते हैं, कहते हैं जी आपने 3B फाइल करी, लेट फाइल करी तो ITC नहीं देंगे। एक 16/4 अप्लाई करते हैं, कहते सामने वाले ने 3B लेट फाइल करी। वो तो बिल्कुल ही गलत इंटरप्रिटेशन है, that will not तो sustain। 16/4 की इंटरप्रिटेशन अगर लॉ के अकॉर्डिंग भी चले हैं तो वो ये कहता है कि मैंने 3B लेट फाइल करी एग्जैक्टली, आफ्टर अ ड्यू डेट और मैंने उसमें ITC नहीं लिया, तो वो ITC मुझे नहीं मिलेगा। केवल इतना ही कवर हो सकता है इस प्रोविजन में, और वो भी अब सुप्रीम कोर्ट के। मगर डिपार्टमेंट बड़े तरीके से उसे 16/4 को सब जगह लगा। जी अच्छा प्लीज नूतन जी, आप काफी देर से हैंड रेज है आपका, प्लीज अनम्यूट करके आप क्वेरी जी प्लीज। हेलो जी, हेलो। हेलो सिद्धांत जी, एक इशू है मेरे साथ, एक क्लाइंट के साथ अभी फेस किया मैंने। 17/18, 18/19 और 19/20 तीनों साल में GTA क्लाइंट है, GTA सर्विस दे रहा है वो। उस केस में क्या है कि स्टाफ से गलती हो गई जी, उसने फॉरवर्ड चार्ज में अपना जो भी इनवॉइसेस है सब एंटर कर दिए। लेटर ऑन जब पता लगा, हमने 18/19 में सारे इनवॉइसेस करेक्ट कर दिए और सभी को रिवर्स चार्ज में कर दिया उनको अमेंडमेंट के थ्रू। अब ऑफिसर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कह रहा मुझे सामने वाली पार्टी से कंफर्मेशन ला के दो कि उसने RC में पे किया या नहीं किया, और उसने ऑर्डर निकाल चुका है वो 2 साल के। 2-2 करोड़ रुपए की डिमांड है मेरी। सर आप मेरे को 1-2 फैक्ट्स क्लियर कीजिए, जो आपने अमेंडमेंट की होगी 19-20 में, तो एक तो 19-20 की ही अमेंडमेंट हो अभी पाई होगी। 17/18 और 18/19 2 साल की बात कर रहे हैं सर हम। हाँ, तो जिनकी अमेंडमेंट नहीं हो पाई पोर्टल पे, नहीं, अमेंडमेंट जिनकी होनी थी सबकी हो गई है वो। अमेंडमेंट पोर्टल तो पे सारी आपने 1 में अमेंडमेंट कर दी है? बिल्कुल कर दी हमने, सितंबर 18 से पहले कर दी दोनों साल की। अच्छा ठीक है, एक तो आपने अमेंडमेंट कर दी है, आपने जो इनवॉइस अपने कस्टमर को इशू किया था उस पर ये लिखा था कि तब टैक्सेस पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। करेक्ट, ये लिखा हुआ है, सभी इनवॉइसेस पहले मेंशन है। और टैक्स आपने कलेक्ट किया नहीं है, दैट इज बिल्कुल वेरी करेक्ट नहीं क्लियर। किया है। हाँ, तो यू विल विन द केस सर, इसमें कोई इशू नहीं है। ट्रिब्यूनल सर, ट्रिब्यूनल आ रही है ऑर्डर आपके पास हो लिए। चुके हैं, DC ने ऑर्डर पास कर सर दिए हैं। देखो, इस लेवल पे तो मैं कह ही रहा हूँ ना, हम डिस्कशन कर ही नहीं रहे, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने अपील फाइल कर ली, मेरी 2 हीयरिंग हो चुकी है अपील में। अपील वाले भाई साहब भी कह रहे हैं कि सर हम नहीं कर सकते, आप सामने वाले से लेकर आओ RCM के सर डॉक्यूमेंट। अपील 99%, सिद्धांत जी वो और तो हम दोनों बैठे हैं यहाँ पे। जी 99% अपील कैसे होती है वो हमें सबको पता है कि सर वो सर, ट्रिब्यूनल से पहले आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा नूतन जी।
सर सब तरीके से उसको समझा के देख लिया, जिस तरीके से समझते हैं वो भी नहीं। समझा हूँ मैं। सर ट्रिब्यूनल में और अपील फाइल करनी पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ। इसका नोटिफिकेशन जो है ना 13/2017 जिसमें ये है, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अदर देन द जीटीए हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स एट 12%। तो आपने तो ऑप्ट किया नहीं 12% का, आपने इनवॉइस पे चार्ज किया नहीं, आपने Correct. जीएसटीआर 1 में भी रिवर्स चार्ज में शो कर रखा है और आपने अपने इनवॉइस पे भी लिख रखा है, तो यू हैव सफिशिएंटली फुलफिल्ड दी थिंग्स। अब रेसिपिएंट की लायबिलिटी थी वो, और अगर हम ये उससे कंफर्मेशन आज की डेट में नहीं ला के दे सकते तो डिमांड आपके ऊपर कंफर्म नहीं हो सकती इस बेसिस पे, सर बिकॉज ही वॉज द टैक्सेबल पर्सन, ही Correct. वॉज द टैक्सेबल पर्सन। राइट, तो इसमें वेट ही करना पड़ेगा सर इसमें। वेट करना पड़ेगा सर, नो डाउट। थैंक यू। तो ये जो 19-20 एक वाले छोटी आए हैं सी शो एक कॉज, छोटी सी क्वेरी थी इसका अभिषेक टाइम जी। इसका टाइम पीरियड कब तक होएगा, सर कंप्लीट कब तक करना है ऑर्डर? 19-20 के शो कॉस्ट 30 मई तक और उनके ऑर्डर 30 अगस्त तक। 30 अगस्त 2024 तक ऑर्डर पास करना यस है। यस यस। इसीलिए शायद इन्होंने एसएमटी 10 नहीं दिया, क्योंकि अभी आया है शो कॉज और 1 महीना तो एसएमटी 10 में लग जाएगा, तो इनका टाइम निकल जाएगा शो। हाँ बिल्कुल, आप आर्ग्यूमेंट बनाओ ना सर इसलिए कि कोई प्रायर इंक्वायरी नहीं की, कोई नोटिस स्क्रूटनी का नहीं दिया, सीधा शो कॉज दे दिया जस्ट बिकॉज द मैटर वाज गेटिंग टाइम बर्ड। तो ये आर्ग्यूमेंट लें आप। बिल्कुल एक इसमें क्वेरी थी बेसिकली कि टैक्स जो हमें अपील का प्री डिपॉजिट है वो आप क्रेडिट लेजर से कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, बड़ी क्लियर है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, ये तो सर्कुलर आ चुका है इस पे तो। सर्कुलर भी आ चुका है और जब आप सॉफ्टवेयर में करते हैं तो आपको यस ऑप्शन मिलता है, कहीं कोई इशू नहीं है। व्हाट अबाउट द पेमेंट ऑफ टैक्स? हाँ 10% पे करना है जी आपको, और विद रिगार्ड टू ओनली द टैक्स पार्ट, नॉट द इंटरेस्ट नॉट द पेनल्टी। अगर आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी की अपील है खाली, कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है, तो आपको प्री डिपॉजिट 0 करना है और आप उसकी अपील फाइल कर सकते हैं। अपील इज बेटर देन रिट पेमेंट ऑफ टैक्स। appeal is better than writ, certainly I would say in cases where you can bear the pre deposit। देखो क्या है, हुआ क्या, पहले ये रेट जीएसटी आने के बाद ही इतना क्वांटम क्यों बढ़ गया, इतनी सर्विस टैक्स में तो नहीं फाइल हुआ करती थी, और हाई कोर्ट्स इनफैक्ट इंटरफेयर भी नहीं करते थे। वो ये कहते थे कि आपके पास स्टैट्यूटरी रेमेडी अवेलेबल है तो आप अपील के थ्रू ही आए हमारे पास, डायरेक्ट नहीं आएंगे रेट जुरिसडिक्शन में। बट क्योंकि जीएसटी में ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ और एडवोकेट लॉबी को उससे फायदा हुआ ही है, रेट फाइल हुई हैं, इतनी फाइल हुई हैं, सबसे पहले ईवे बिल के ऑर्डर्स के अगेंस्ट फाइल होने लगी, उसके बाद ट्रायन 1 के रिस्पेक्ट में फाइल होने लगी, और अब ये जो शो कॉज नोटिस आए हैं उनके रिस्पेक्ट में भी फाइल होने लगी। वो तो है ही, लेकिन कोई गौरव कटियार डालेगा तो उसको पूरे गूगल में आ जाएगा, आकांक्षा जी को जी तो अब ये जो असेसीज जा रहे हैं रिट में, इन्हें बेनिफिट तो मिल रहा है कि ऑर्डर क्वॉश हो गया तो इमीडिएटली प्री डिपॉजिट नहीं करना, विच वुड हैव रन इनटू करोड्स। तो उनके केस में अच्छा है जहां पे कि आपको एक अननेसेसरी ऑब्नॉक्सियस डिमांड पे 10% जमा करना पड़ रहा है और वो बियर नहीं कर सकता या इतना आउटफ्लो हो जाएगा, तो वहां पे तो रिट पिटीशन आप ठीक है कंटेम्पलेट कर सकते हैं। बट इन अदर केसेस इफ यू गो थ्रू अपीलेट जुरिसडिक्शन तो दैट वुड बी अ बेटर आउटकम इन माय व्यू, वहां पे वो क्वॉश होगा। even some high courts has given the judgment, if there is an option to file an appeal, then they are not accepting the writ also। नहीं, अब क्या है ना, जिनके केस में रिप्लाई नॉट फाउंड टू बी सेटिस्फैक्टरी है, इस तरीके के जो बेकार वेग ऑर्डर्स है ना, वहां पे हाई कोर्ट इंटरफेयर कर वहाँ देता है। हाँ वहाँ बेसिकली कर देता है, और प्लस कहीं कोई प्री डिपॉजिट इज टू मच हाई दैट इम्पैक्ट द टैक्स पेयर, तो वहाँ पे भी हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिकॉज यू आर कॉजिंग ग्रेव इनजस्टिस टू अ पार्टी और आप उसको कंपेल कर रहे हो कि वो अपील में जाए, जबकि आपका खुद का ऑर्डर वेग है, तो वो इंटरफेयर कर लेता है। टाइम लिमिट मैंने एक थी, मैंने पोस्ट कर दी है ग्रुप पे सिद्धांत जी, इसमें शायद कुछ एक 30 ये देख लीजिए, इसमें कुछ वो तो नहीं है कि आपका कोई इसमें सबमिशन है, और डिस्कस भी कर लेते हैं, इनफैक्ट आई थिंक सो 2-5 मिनट लगा के। आई थिंक ये ठीक है क्योंकि बेसिकली अभी 17, 18, 18, 19 की शोकॉज की टाइम लिमिट निकल चुकी है, 30 अप्रैल को 18, 19 निकल चुकी है 73 की, और 17, 18 की 31 दिसंबर को निकल चुकी है। 73 की अपील की डेट भी निकल चुकी है, क्योंकि अपील बियॉन्ड द 120 डेज, मतलब इंक्लूडिंग
कॉन्डोनेशन। कॉन्डोनेशन, क्या सिद्धांत जी कोई केस लॉ है जो अलाउ हो सकती है? सर ओनली इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, कोई डेथ हो जाती है, कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, तो देर आर 1 or 2 हाई कोर्ट्स विच से दैट वी कैन कंसिडर दैट एंड वी कैन एक्सटेंड द लिमिटेशन इवन बियॉन्ड द कॉन्डोनेबल पीरियड। बट सुप्रीम कोर्ट जिन केसेस में हाई कोर्ट ने डिनाई किया है और मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट इज वेरी स्ट्रांगली सेड दैट कि व्हेन लॉ डज नॉट गिव द पावर टू कमिश्नर अपील टू कॉन्डोन द डिले बियॉन्ड 30 days पीरियड, नो अपील कैन बी एडमिटेड। तो ये थोड़ा सा इशू है, आपको अपने पोर्टल को रेगुलर चेक करना है। अगर वो रह जाता, भी कल ही मेरे पास एक सज्जन आए हैं, पुरानी क्लाइंट है, एंड इन वन ऑफ देयर कंपनीज दे हैव द ऑर्डर एस्केप देयर नॉलेज एंड अपील इज ऑलरेडी टाइम बार्ड, कॉन्डोनेबल पीरियड भी खत्म हो चुका है। अब हम अपील जस्ट फाइल कर रहे हैं फॉर मेयर फॉर्मेलिटी, और उसमें हमें मेडिकल ग्राउंड्स देने होंगे, एंड देन वी विल सी। जब वो रिजेक्ट होगा तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, बिकॉज कमिश्नर अपील कैन नॉट एंटरटेन विदाउट द डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट इन दोज केसेस। राधिका जी ने एक क्वेरी डाली है अतुल जी, हाँ पहले राधिका जी की ले लेते हैं, फिर अतुल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। रेक्टिफिकेशन, अतुल जी आपकी क्वेरी अभी ले लेते हैं, वर्बल डिस्कस करेंगे, सो 2 मिनट ले रहे हैं प्लीज। एक क्वेरी डाली है कि टैक्स डिपॉजिट हमने कर दिया था इस MMT 10 में, SCN इशू हुआ, उसके बाद भी ऑर्डर आ गया, तो अपील बेटर है रेक्टिफिकेशन बेटर है? देखिए अपील की जब तक टाइम लिमिट है, रेक्टिफिकेशन तो आप फाइल कर ही दीजिए, क्योंकि 30 दिन बाद पोर्टल से हट जाएगी, स्टेट डिपार्टमेंट ने कुछ खोलना नहीं है, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आप रेक्टिफिकेशन तो तुरंत फाइल कर दीजिए, साइमल्टेनियसली अपील के लिए रेडी रहिए और परस्यू कीजिए रेक्टिफिकेशन बिफोर अपील डिसाइड हो जाए, क्योंकि रेक्टिफिकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है बट उसकी स्पीड स्लो है। बट अगर आप जाएंगे और फोर्स करेंगे तो वो रेक्टिफिकेशन करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे। राइट। और अपील आप विड्रॉ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपकी रेक्टिफिकेशन आप डाल ही दो, और अगर इनफैक्ट टाइम लिमिट निकल रही है अपील की, तो अपील तो आप डाल ही देना, उसे रेक्टिफिकेशन के चलते मत रोक देना। अतुल जी आप कुछ कह रहे थे, अतुल जी आप प्लीज अनम्यूट करके डिस्कस करें, और आपने शायद कुछ पोस्ट भी किया है, वो हम देख नहीं पा रहे हैं, शायद गलती से हो गया, आई थिंक सो। सर मैंने जानबूझ के किया है, मैंने किया है। प्लीज प्लीज प्लीज। एक्चुअल में मेरे को एक नोटिफिकेशन आई थी कि प्री डिपॉजिट नहीं करना है 10%। प्री डिपॉजिट मैंने- करना ही नहीं है सर ये नोटिफिकेशन थी, मैंने वो डाली है। सर, देख नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं मैं पढ़ भी रहा हूँ, देख मैं पा रहा बता था। देता हूँ, ऐसा है नहीं, वो किसी स्पेसिफिक केस में होगी। Who intends to file an appeal against an order passed by the proper officer under the accordance circular 182 इतना pursuant to directions of the honorable supreme। सर ये फिलको ट्रेड, सर ये ट्रान 1 के केसेस के लिए स्पेसिफिक अपील है। यहाँ पे उन्होंने जरूर वेव किया है वो टू पे द प्री डिपॉजिट, ये बड़े लिमिटेड। हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके सर, अंडरस्टैंड। हाँ, ये सर आप अगर पढ़ेंगे ना तो फर्स्ट पैरा में ही लिखा हुआ है, इन परसुएंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस फिलको ट्रेड। हाँ राइट। ये बेसिकली स्पेसिफिक थी जब ट्रान 1 के हाँ। बहुत सारे इश्यूज हुए थे अतुल जी। ट्रान 1 का तो एक अपने आप में कंप्लीट इश्यूज थे, डिपार्टमेंट की साइड से उड़ गए थे, बहुत सारे इश्यूज थे, तो उसके लिए थी। बट अभी कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, 10% जमा होना है। एक फेवर में चीज ये है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं टू डिपॉजिट दैट 10%। इसमें कहीं कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। इंटरेस्ट और पेनल्टी का आपको 10% जमा नहीं करना है। पोर्टल अच्छे Thank से you, काम sir. कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है अपील फाइल करने में। राइट। कभी कोई इशू आता है तो आप ग्रुप पे पोस्ट कीजिए, मी एंड सिद्धांत जी इज अवेलेबल टू हेल्प यू आउट। It has been said appeal is better than ये डिस्कस हो गया सिद्धांत जी, वही कि रेक्टिफिकेशन फाइल करें, अपील फाइल करें। सर यस। अब गर्ज इनकी क्वेरी है कि आप कह रहे हैं कि अपील बेटर है रिट से, बट अपील रिक्वायर्स अ पेमेंट ऑफ प्री डिपॉजिट। डेफिनेटली देखिए इसके कई सारे कारण हैं। अपील प्री डिपॉजिट तो मांगता है, बट जब आपका मैटर ट्रिब्यूनल में पहुंचता है ना, एक चीज अगर हम एज प्रोफेशनल्स अप्रिशिएट करें तो जो ट्रिब्यूनल में बेंच बैठी है, जो मेंबर हैं, जो जजेस हैं, दे आर ओनली डीलिंग विद टैक्स मैटर्स, वेयर एज जब हाई कोर्ट में केस जाता है ना तो दे आर डीलिंग विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स। वहां पे सिविल भी डिस्कस हो रहा है, क्रिमिनल भी डिस्कस हो रहा है, साथ ही साथ टैक्स भी डिस्कस हो रहा है। सो यू नेवर नो कि उस टाइम पे जज का क्या दिमाग में चल रहा है और किस तरीके से। हमने कई जगह देखा है, देखिए ये अगर 16/4 पे जो रिट पिटीशन फाइल हुई ना और सारी अगेंस्ट में आई हैं,
या 16(2)(c) में भी नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स में पटना हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई अगर सप्लायर ने टैक्स नहीं पे किया तो हम नहीं दे सकते। अगर ये एक जुडिशियल मेंबर बिफोर द ट्रिब्यूनल मैटर डिस्कस होता ना, तो आउटकम डिफरेंट हो सकता था। 16(4) की डिले को कंडोन किया जा सकता था, बट अब क्योंकि इतने केसेस में हाई कोर्ट ने एडवर्स ऑर्डर दे दिए ऑलरेडी रिट पिटीशन में जाकर के, तो अब ट्रिब्यूनल भी कुछ नहीं करेगा, जो डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। तो रेट कैन बी बेनिफिशियल, कैन नॉट बी बेनिफिशियल, वो डिपेंड करेगा फैक्ट टू फैक्ट। बट अगर आपका केस अच्छा है और ये इस तरीके से गलत तरीके के शो कॉज नोटिस इशू हुए हैं, तो अपील को ही कन्फाइन करिए, रिट में मत जाइए अगर आप प्री डिपॉजिट बियर कर सकते हैं तो। एनी मोर क्वेरी विच एनीवन हैव? सिद्धांत जी, एक क्वेरी थी जो स्किप हो गई है जी जिसमें बेसिकली क्या था कि जो आईएसडी वाले पार्ट की बात कर रहे थे, अश्विन जी की क्वेरी है कि भाई आपने एक तो ब्लॉक कर दिया 50% एज पर द बैंक, और 50% ब्लॉक करने के बाद आप आईएसडी अप्लाई कर रहे हो, तो वो फर्दर फिर बैंक के पास गया, तो क्या फिर फर्दर 50% ब्लॉक करना है? नहीं ना, आपको आईएसडी में जब आप इनपुट सर्विस आएगी क्रेडिट, आप पूरा डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसके बाद रेसिपिएंट यूनिट जो क्रेडिट अल्टीमेटली यूटिलाइज करेगा वो 50% 50% लेगा। ब्लॉक करेगी। हाँ 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 बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उसे ब्लॉक करना ही नहीं है। जी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इनपुट सर्विस का बिल आता है जो कि 17(5) में ब्लॉक्ड है, तो वहां पे भी बड़ा क्लियर है कि पहले आप डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अल्टीमेटली जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका रिस्पेक्टिव 17(5) वो स्टेट को करना है, ईच स्टेट को करना है। और बहुत सारी चीजें भी है ना सर, जो आईएसडी का इनपुट है वो बेसिकली इट इज नॉट क्लियर कि मतलब इसमें ये नहीं है कि आपको आईएसडी आया और आपने उठा के ले लेना है। अगर आईएसडी में कोई क्रेडिट ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, राइट या आप एग्जाम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपको रूल 42 अप्लाई करना है। अगर आप, जो हम बात कर रहे हैं बैंक से रिलेटेड भी, अगर वो बेसिकली रिलेटेड टू नॉन बिजनेस है तो आपको ब्लॉक करना है। बट सिद्धांत जी, इशू इसमें यह आता है कि हाउ द पर्सन विल नो दैट व्हाट द आईटीसी हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। हाउ द पर्सन विल नो इट? नो, ये तो सेल्फ असेसमेंट करनी है ना आपको एज एन इंडिपेंडेंट बैंक। जो 50% वाले में तो बड़ा क्लियर है कि 50% ही लेना है। सो एग्जांपल, आईएसडी ने 5 लाख रुपए मेरे को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मेरे को 2.5 लाख ही करना है, बाकी 2.5 लाख रुपए रिवर्स करना है। हाँ, जो 17(5) का ब्लॉड क्रेडिट है वो तो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होगी ही, मेरे पास जो रिकॉर्ड्स होंगे कि ये मेरे ब्लॉड क्रेडिट को पर्टेन करना है और मेरे को रेस्पेक्टिव यूनिट पे ही रिवर्स करना है। मेरे को आईएसडी लेवल पे कोई रिवर्सल नहीं करना, वो केवल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। वहां पे लॉ बड़ा क्लियर है। बिल्कुल। एनी मोर क्वेरी? एक जो एसबी गर्ग जी की जो आपने जवाब दे दिया है, नो, इनफैक्ट सर प्री डिपॉजिट के बिना अपील नहीं फाइल हो सकती है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अफर्म कर दिया है। एक दो केसेस में हाई कोर्ट वेवर देने लगा था जहां पे कि अपीलेंट की फाइनेंशियल पोजीशन ही नहीं थी कि वो अपील फाइल कर सकता ऑन पेमेंट ऑफ प्री डिपॉजिट, तो वहां पे उन्होंने वेव किया था। बट उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है कांतिलाल भगूजी मोहिते, ये 14 फरवरी 2024 का जजमेंट है, जहां पे उन्होंने दे हैव मेड इट वेरी क्लियर कि विदाउट प्री डिपॉजिट देयर कैन बी नो अपील एंड नोबडी हैज द पावर टू वेव दिस प्री डिपॉजिट कंडीशन। हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, ये पार्लियामेंट ने प्रावधान दिया हुआ है, इसको कंप्लाई करना ही करना है। एनी मोर क्वेरीज? एनीथिंग एल्स? सिद्धांत जी, कुछ और डिस्कस करना है? I understand that you both have taken up all the queries. पूजा जी, बिफोर प्री डिपॉजिट कंप्लीटिंग, एक पॉइंट मैंने और नोट कर रखा था सुमित जी, हाँ, अगर यस यस यस, कुछ सिद्धांत लोगों जी को, वो पॉइंट ले लेते हैं, उसके बाद फिर कंक्लूड करते हैं। एक Yes, मिनट, हाँ एक आशा जी ने क्वेरी पोस्ट की है, प्री डिपॉजिट ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट एंड टैक्स अमाउंट ओनली। ये टैक्स बेसिकली अमाउंट, जो टैक्स अमाउंट है ना, सिर्फ वो जमा करना है। मैंने 2-3 बार क्लैरिफाई भी हाँ करा हाँ है, हाँ, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे कोई जमा नहीं करना प्री डिपॉजिट आप। राइट। और जब आप उस पे जाते हैं ना, पोर्टल पे फिल करते हैं, तो वो खुद ही नहीं उठाता। सिद्धांत जी, आप जी कुछ कह सिद्धांत हाँ, जी, रहे थे? मैं जो पॉइंट हम्म, डिस्कस करना चाह जी रहा था, ये शायद कुछ कई लोग फेस कर रहे होंगे। अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बाय द ड्यू डेट, बट 3B लेट फाइल होती है, तो इंटरेस्ट की प्रपोजिशन क्या है, इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा? तो हमारे पास राजस्थान हाई कोर्ट हमारे अगेंस्ट था,
अब एक जजमेंट अभी रिसेंटली आया है मद्रास हाई कोर्ट का जो फेवर में आया है, विच इज अ मच मोर डिटेल्ड जजमेंट इन द केस ऑफ आइचर मोटर्स। आइचर मोटर्स में मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि द मोमेंट अमाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द असेसी ऑफ द टैक्स पेयर and gets credited into the electronic cash ledger, the amount is available with the government of India, and therefore no interest can be levied on this portion. तो ये एक जजमेंट है, जो पहला जजमेंट है। आई गेस 2 जजमेंट अगेंस्ट में थे, वन वाज राजस्थान हाई कोर्ट, अनदर आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर। तो जो अगेंस्ट में थे कि वो कहते थे जब तक 3B फाइल नहीं होगी तब तक हम नहीं मानेंगे कि टैक्स की लाइबिलिटी ऑफसेट हो गई, इंटरेस्ट विल कंटिन्यू। बट एक मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है, इसको जरूर पढ़ें। कई सारे उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं, डिटेल्ड जजमेंट है। आरबीआई के FAQs लगाए हैं जहां पे आरबीआई ये अफर्म करता है कि जिस दिन कैश लेजर में पैसा आ जाता है उस दिन हमारे पास पैसा आ जाता है, एंड वी आर दी सोल कलेक्शन एजेंसी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब वो अमाउंट गवर्नमेंट के पास आ गया तो उस पर इंटरेस्ट कैसे लग सकता है? तो दैट इज अ वेरी गुड जजमेंट एज ऑफ नाउ, बट ओनली टाइम विल टेल, क्योंकि डिपार्टमेंट ने अपील फाइल कर दी है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। स्टे नहीं मिला है इस जजमेंट को, तो आप डिफेंस में अपने जरूर लें जहां भी ऐसा इशू आता है, और अगर वर्थ फाइटिंग है, हाई स्टेक्स आर इन्वॉल्व्ड। दिस वाज Sumit ji, over to you. You are saying something. Asha ji, Rajesh ji, you want to say before concluding today's session? I think no. नहीं सुमित जी, ऑलरेडी अंकित और Nothing to add. सिद्धांत दोनों ने ही बहुत Already बहुत उन्होंने ही बहुत अच्छे add से कर दिया। सारी क्वेरीज टेकअप कर ली है। हाँ। राजेश जी प्लीज आप। नहीं, दोनों ने बहुत अच्छे से क्वेरी सारी से रिजॉल्व कर दी है। थैंक यू सिद्धार्थ जी एंड अंकित जी, आपने सारा सबका क्वेरी को कम्प्लीटली का रिजॉल्व किया है। थैंक यू वेरी मच। अजय जी, बिल्कुल ये फेथ होता है जब अंकित जी और सिद्धांत जी होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इनकी क्वेरीज सारे इश्यूज को रिजॉल्व जरूर करेंगे। और देखिए नोटिफिकेशन सिद्धांत जी हमारे मास्टर हैं, सारी साइटेशन जजमेंट सब दे देंगे व्यूअर्स को। ये मास्टर है भैया उस फील्ड के। और मैं कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिकल ओवरव्यू सारी चीजों को लेते हुए सबको बता के चले। सबकी अपनी इम्पोर्टेंस तो होती है। दोनों जब हम लोग बहुत बैठते जरूरी हैं है तो दोनों कोशिश चीजें। करते हैं कि ओवरऑल चीजें परोस दें। knowledge is a two-way interaction. right. So Pooja ji, you want to add anything? बट ये है कि 17-18 एंजॉय तो करा है प्रोफेशनल्स ने, ये तो मानोगे आप। चाहे डिपार्टमेंट ने नोटिस गलत दी है, क्यों सिद्धांत जी? मैं अभी भी एंजॉय कर रहे हैं। अभी तक हम ये कह रहे हैं कि अंकित जी नोटिस आगे भी गलत आए। एंजॉय कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो प्रोफेशनल है, हर सुमित जी, वर्क को नहीं, और एंजॉय एक्चुअल करेंगे। में स्टेट जीएसटी से जो भी नोटिसेस आ रहे हैं वो आप कुछ भी रिप्लाई उनको कितने भी ढंग से दे दो, वो वन लाइनर ही दे रहे हैं कि नॉट नहीं, सेटिस्फैक्टरी। नहीं अच्छा, और वन अपना लाइनर वो दिमाग ऑर्डर भी नहीं, किसी अच्छा किसी जी, केस में ऑर्डर में किसी केस में आप सुनते भी हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा बट हाँ, कुछ लकी लोग तो हैं। हाँ नहीं कुछ लोग देखो, तो बिल्कुल ऐसे कई वार्ड हैं जिन्होंने हाँ। केवल रिटर्न सबमिशन के बेस पे पूरी हाँ। अच्छी खासी डिमांड को ड्रॉप किया है। बहुत बिल्कुल अच्छी है, केस, Even did not बिल्कुल call है। for मेरे hearing. 2-3 केस बहुत बड़ी डिमांड थी, Even did not अच्छी call for रिटर्न के hearing, sir. बेसिस पर तो खत्म हुई है। एक आध मेरिट officer हैं ऐसे। मेरिट पे काम हो रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल जीरो बट नहीं है। कुछ ऑफिसर्स तो एकदम ही परसेंटेज बहुत कम है उस मेरिट के। हाँ। अब परसेंटेज कम है, मगर एक चीज और है, जब वो ड्रॉप करते हैं तब भी एक लाइनर ही लिखते हैं। हाँ। अभी तो अनिकेत जी नोटिस कह हैज रहे बीन हैं, ड्रॉप्ड। अग्री कई लोग इसे मतलब पहले जो 30 सितंबर को लग रहा था कि स्टेट अथॉरिटीज ने क्या कर दिया, ये स्टेट अथॉरिटीज की जिनकी जुरिस्डिक्शन थी वो खराब हुआ, लेकिन एक महीने बाद वो कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, एक चीज और भी अप्रिशिएट करें हम। जीएसटी बड़ा शांत चल रहा था जब तक नोटिस नहीं आ रहे थे। बहुत सारे क्लाइंट तो कह रहे थे यार जीएसटी में कुछ है ही नहीं, नथिंग इज देयर। और प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज और कहता हूँ, अभी भी लोग कहते हैं, इनवॉइसिंग आने के बाद लोग कहने लग गए आजकल फिर से कि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी कंसल्टेंट की या एक्सपर्ट्स की। मतलब वक्त बताएगा वो तो। सर, गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी खासियत है, वो ये कहती है जीएसटी इज वेरी इजी, मगर साथ में एक तड़का लगा देती है। जैसे ई इनवॉइस कर दिया, ई इनवॉइस से इंपोर्ट होनी चालू हो गई, अब तड़का लगा दिया जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हैं, भाई साहब वो एक कॉलम एक्स्ट्रा भरे। तो तड़का लगाती रहती है सरकार, चिंता ना करे सर। मैं कह रहा हूँ कॉम्प्लिकेसी इतनी है कि अकाउंटेंट लेवल पे हो पाना बहुत इजी नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, जो नोटिस की हम बात कर रहे थे, नोटिस में मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ सिद्धांत जी, इस फोरम के थ्रू
मैंने कुछ नोटिस ऐसे देखे जो बड़े जेन्युइन निकले। मतलब टैक्स पेयर ने अच्छा खासा अपनी मर्जी चला रखी थी, जो स्टेट अथॉरिटीज के नोटिस आने के बाद अच्छा खासा अमाउंट जमा हुआ है जो कि लिटिगेट भी नहीं होगा। उसमें सबसे मेन पार्ट इंटरेस्ट लोगों ने जमा ही नहीं करा रखा था सिद्धांत जी। लोगों ने नहीं करा, इस समय नहीं करा रखा सर राजेश जी कह रहे हैं ना अकाउंटेंट के थ्रू रिटर्न फाइल करा रखी है, तो उसका रिपरकशन क्या होता है? लोगों ने गाड़ी के क्रेडिट लिए हुए हैं। बिल्कुल ले डिपार्टमेंट रखे जो हैं। 17/5 का भले ही अजम्पशन पे दे रहा है, हम डिफेंस भी ले रहे हैं, केस लॉ भी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जिसने पर से गलत कर रखा है वो तो कहीं ना कहीं सही है ना डिपार्टमेंट के सर पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं वही कह रहा हूँ सर, ऑलमोस्ट 50% डिमांड ऐसी निकलेगी जो कि लिटिगेशन नहीं होएगी। मैंने खुद कई केसेस में देखा, एक हमारे पास बंदा आता है खुद मास्टर, क्लाइंट इज खुद मास्टर ऑफ द जीएसटी, वो कहता है जी मैं एग्जाम सप्लाई देता हूँ, मैं आईटीसी क्यों रिवर्स करूं? सिद्धांत जी समझ रहे हैं बात? हमने कहा यू गो टू द डिपार्टमेंट, ही गो टू द ऑफिसर ऑल्सो कि मुझे आईटीसी क्यों नहीं मिलेगा। ऑफिसर ने उसकी सुनी नहीं, ऑर्डर भेज दिया उठा के। सो देयर इज लॉट ऑफ डिस्कशन, बट स्टिल व्हाट आई एम सेइंग कि वेग है नोटिसेस काफी सारे, बट स्टिल देयर आर द 50% रेशियो ऑल्सो जिससे डिपार्टमेंट को कलेक्शन भी हुई और जो जेन्युइन भी थे। कुछ जेन्युइन भी रहते हैं सर, इसी तरह से कुछ जेन्युइन रहते हैं, कुछ गलत रहते हैं। हाँ गलत भी है। हाँ, एडवांस की genuine भी है। एडवांस को मैं लाइव बता रहा हूँ, एडवांस एडजस्टमेंट को ऐड कर करके खूब डिमांडें आई है सर। तो सर ये तो है ही, फास्ट तो कर ही दिया कहीं ना कहीं रिकवरी प्रोसीडिंग्स को। देखो सही है ना, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड शो कॉस्ट भेज दो। 100 लोगों को भेजा, 50 लोग तो पे कर 50 जाएंगे, जमा 50 जो करा लोग दिया। लड़ेंगे उनको देखेंगे। और फिर तो दूसरी 50 चीज, लोगों की रिकवरी तो आपने ये It's हमने like a- 2024 तक कर दी ना सर। सर्विस टैक्स में आप देखो आज ट्रिब्यूनल की पेंडेंसी कितनी है, 10-10 साल रिकवरी नहीं होती थी, क्योंकि असेसमेंट थी नहीं। ऑडिट होता था 3 साल बाद, ऑडिट इनिशिएट होता था, जब तक कंप्लीट होता था 1 साल टाइम बार हो जाता था। सर मैं ये कह रहा हूँ तो जो स्टेट अथॉरिटी में है ना वो तो एंजॉय करें। सबसे मेन चीज क्या है कि वो हर साल असेसमेंट करके छोड़ेंगे। 73 को छोड़ने वाले नहीं है वो, आप ये समझ के चलिएगा। सेंट्रल से नोटिस नहीं दिख रहे, बट सिद्धांत जी ये वो क्लियर है 74 में करते हैं ना ये वो उनका सीधा तरीका है, सेंट्रल हम 73 73 तो को मानते छेड़ ही ही नहीं रहा। हम्म। वो अभी 74 वाली टाइम लिमिट को लेके चल रहा है। बट क्या यानी चांसेस है उसके अंदर, जब वो फ्रॉड प्रूफ कर पाएंगे तभी तो 74 में सर Exactly. वो तो आपकी गलती को भी फ्रॉड मानते हैं ना राजीव जी। वो तो अलग बात है, लेकिन फ्रॉड प्रूफ करना भी इतना आसान नहीं है ना, बिना ऑडिट किए, बिना कुछ चेक किए, बिना डॉक्यूमेंट के बेसिस पर। बट सर वो ट्रिब्यूनल तक जाना पड़ता है उसके लिए राजेश जी, वो नोटिस तो देंगे। कई जजमेंट है, मेयर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग ऑडिट इज नॉट सफिशिएंट टू इन्वोक एक्सटेंडेड पीरियड। तो और हम लोगों केवल ने आपने आइडेंटिफाई कर ली नॉन पेमेंट, ये थोड़ी है कि आप 74 इन्वोक कर दोगे। आप ये तो एस्टैब्लिश करो फ्रॉड था, इंटेंशन टू इवेड था। अच्छा मैं एक चीज और इसमें सिद्धांत जी मैंने फील करा ऑडिट के टाइम पर, जो टाइम लिमिट ये लोग आराम से टाइम को गुजारते हैं। मेरा मानना यह है कि हम लोग लेटर लिख दें जब हमने डॉक्यूमेंट पूरे दे दिए कि वी रिक्वेस्ट फॉर द फिजिकल विजिट ऑफ द प्रेमाइसेस, तब से इनका मीटर चालू हो जाता है। करेक्ट। वरना आराम से बिल्कुल एंड मोमेंट पे आएंगे तब भगदड़ मचाएंगे, प्रोफेशनल के लिए भी क्लाइंट के लिए। चलिए नाउ इट्स 6:37 एंड द टॉपिक्स आर मोर। नहीं अंकित जी Special बहुत बढ़िया was- डेलीब्रेशन, मुझे बहुत बढ़िया डेलीब्रेशन। और जैसा कि हम प्रोफेशनल्स की वैल्यू एडिशन में आप लोग जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके लिए वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। एंड ओवर टू यू पूजा फॉर कंक्लूडिंग। Thank you, sir. It was really very informative session and हमारे दोनों speakers ने जितने अच्छे से queries ली साथ साथ with the topic and उसको resolve किया, that was really very well. I would like to invite Asha ma'am for vote of thanks. आशा जी यू आर हियर, अदरवाइज वोट ऑफ थैंक्स वैसे अंकित जी और सिद्धांत जी फॉर्मली कहा गया था, इसलिए फॉर्मली वोट ऑफ थैंक्स आपको जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे से एज यूजुअल सबकी क्वेरीज को 1-to-1 सॉल्व करते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये रहता है जहाँ मतलब नो पीपीटी रिक्वायर्ड बट एवरी क्वेरीज इज रिजॉल्व। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, कासा का थैंक यू कि इतनी अच्छी आप वेबिनार कंडक्ट स्पेशल करा रहे थैंक्स हैं। टू ऑल एंड पार्टिसिपेंट टू whom कि जिसके कुछ कारण पार्टिसिपेंट्स अभी एग्जिट हो चुके हैं बट इन 32 एब्सेंशिया थैंक यू कासा, टू ऑल द थैंक यू पार्टिसिपेंट्स अंकित जी, कि आप लोग टाइम निकाल के ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू बोथ ऑफ थैंक यू, यू एवरीवन, थैंक यू राजेश जी। थैंक यू।
Thank you. Thank you, viewers. Thank you, everyone. Thank you, Pooja. Thank you. Bye. Thank you.